آج اتوار تھا۔ آج سارم نے کہیں نہیں جانا تھا۔ اگر آج اتوار نہ بھی ہوتا تو بھی سارم چھٹی کرتا۔ آج دن ہی ایسا تھا۔ آج سارم کی شادی کی 7ویں سالگرہ تھی۔ یہ دن سارم کی زندگی میں بہت اہم تھا۔ وہ اپنی شادی کی سالگرہ بڑے دھوم دھام سے مناتا تھا۔ گھر پر اپنے دوست احباب کو رات کے کھانے پر مدعو کرتا، سارا کو کوئی زیور تحفے میں دیتا۔ یہ گھر دوسرے گھروں کے مقابلے میں نسبتاً بڑا تھا، لہذا سالگرہ کی تقریب گھر کے باہر لان میں رکھی گئی۔ سارا اور سارم نے اپنے دوست احباب کو مدعو کر لیا تھا۔ یہ دوست احباب بہت منتخب اور محدود تعداد میں تھے۔ جبار، ناصر اور کاسموس 3 کے محسن نغمی اس فہرست میں سب سے اوپر تھے، اور محسن نغمی جب تک محفل میں رہے سب سے پوچھتے پھرے، کہاں لکھا ہے؟ سارم کا گھر اس وقت خوبصورت روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ کچھ مہمان آ گئے تھے، کچھ آ رہے تھے۔ سارم اور سارا گیٹ پر کھڑے اپنے مہمانوں سے مبارکباد اور پھول وصول کر رہے تھے۔ سارا نے سلور کے خوبصورت کام والی کالی ساڑی باندھی ہوئی تھی۔ اس کے جگمگاتے حسن کے سامنے روشنی ابھی ماند پڑ رہی تھی۔ اس کے گلے میں بڑا ڈائمنڈ سیٹ لشکارے مار رہا تھا، اور سیٹ سارم نے اسے تحفے میں دیا تھا، جبکہ سارا نے اسے ایک گھڑی، ایک پرفیوم اور سوٹ تحفے میں عطا کیا تھا۔ سارم اس سفید سوٹ میں بڑا پرکشش دکھائی دے رہا تھا۔ سارا کی دی ہوئی گھڑی اس کی کلائی پر خوب سج رہی تھی، اور پرفیوم کی خوشبو لوگوں کا دل مو رہی تھی۔ تقریباً سارے مہمان آ چکے تھے، بس سارا کو اپنی ایک سہیلی کا انتظار تھا۔ اس کی پرانی کلاس فیلو شاہدہ، سارا کی بیسٹ فرینڈ۔ اب تو خیر سے وہ شادی شدہ ہو چکی تھی، 2 بچے بھی تھے۔ اس کا شوہر ڈاکٹر تھا۔ وہ دونوں گیٹ پر کھڑے شاہدہ کے منتظر تھے کہ ایک شاندار گاڑی سرسراتی ہوئی گیٹ کے سامنے رکی۔ گاڑی رکتے ہی ایک باوردی ڈرائیور بہت تیزی سے گاڑی سے نکلا اور بڑے ادب سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ پچھلے دروازے سے جو شخص باہر آیا اسے دیکھ کر دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ وہ ظفر مراد تھا، سارا کا چھوٹا بھائی۔ ارے یہ تو ظفری ہے، سارا اسے دیکھتے ہی آگے بڑھی۔ ہاں سارا، یہ تو کمال ہو گیا۔ وہ بھی سارا کے ساتھ آگے بڑھا۔ ظفر بھی تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ اس نے دونوں کو شادی کی مبارکباد دی، سارم سے گلے ملا، اسے پھول پیش کیے، پھر وہ سارا کی طرف متوجہ ہوا۔ میری باجی، اس نے اپنے بازو پھیلائے۔ میرے ظفری، سارا نے جلدی سے اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور اپنے آنسو روک نہ سکی، بے اختیار رو پڑی۔ ظفر مراد کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ ارے باجی، کیا کر رہی ہیں؟ روئے نہیں، آپ کی آنکھوں کا میک اپ برباد ہو جائے گا، ظفر نے اسے الگ کر کے مسکراتے ہوئے کہا۔ او یار، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، اس سے میک اپ خراب نہیں ہوتا، ویسے بھی آج کل میک اپ واٹر پروف ہوتا ہے، سارم نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر ظفر ایک دم گاڑی کی طرف واپس مڑا۔ ڈرائیور جو پیچھے کھڑا تھا اس نے آگے ہاتھ بڑھا کر ظفر مراد کو ایک چھوٹا اور ایک بڑا پیکٹ دیا۔ ظفر نے وہ چھوٹا پیکٹ سارا کے ہاتھ میں دیا۔ باجی، یہ آپ کا تحفہ، ظفر مراد نے مسکرا کر کہا۔ ارے ظفر، تم آ گئے، یہی تحفہ ہمارے لیے بہت تھا، سارم پرخلوص لہجے میں بولا۔ سن لیا سارا باجی، یہ سارم بھائی مجھے بطور تحفہ ہتھیانے کے چکر میں ہیں، ظفر مراد نے شوشہ چھوڑا۔ نہیں بھائی نہیں، میں ایسا بھول کر بھی نہیں کروں گا، جانتا ہوں تمہاری بیوی فوراً میری FIR کٹوا دے گی اغوا کے کیس میں، سارم نے اسی انداز میں جواب دیا۔ ارے ہاں ظفر، زمرد کو کیوں نہیں لائے؟ سارا کو اچانک اپنی بھابھی یاد آئی۔ جی باجی، لاؤں گا اسے کسی دن، ظفر نے بات ٹالنے کے لیے کہا۔ اور سارم بھائی، یہ آپ کا تحفہ، ظفر نے بڑا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ ارے یار، ایک ہی تحفہ کافی تھا، سارا کو دے تو دیا، سارم نے کہا۔ باجی کو تو میں نے میک اپ باکس دیا ہے۔ کیا؟ ظفر نے مسکرا کر جملہ ادھورا چھوڑا۔ ابھی سارم ظفر کی بات کا کوئی شرارت بھرا جواب دینے کا سوچ رہا تھا کہ شاہدہ اپنے شوہر اور بچوں سمیت آ گئی۔ پھر وہ سب ہنستے مسکراتے اندر آ گئے۔ یار کیک کب کٹے گا؟ بھوک لگ رہی ہے، جبار ناصر نے انہیں دیکھ کر شور مچایا۔ سارا چلو جلدی کیک کاٹو، ورنہ یہ کرائم رپورٹر ابھی پولیس بلا لے گا، اس کا پولیس سے بڑا یارانہ ہے، سارم نے کہا تو سب نے مل کر ایک زبردست قہقہ لگایا۔ سارا اور سارم کیک کاٹنے کے لیے تیار ہوئے تو سارم کو اچانک کچھ خیال آیا۔ ایک منٹ، سارا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ سارم سامنے بیٹھے ہوئے ظفر مراد کی طرف بڑھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور ہاتھ پکڑے پکڑے سارا کے پاس لے آیا۔ ظفر کو اپنے اور سارا کے درمیان کھڑا کیا، چھری اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ پھر سارم اور سارا نے ظفر کا ہاتھ پکڑا۔ تینوں نے کیک کے گرد جلتی 7 موم بتیاں بجھائیں اور مبارک سلامت کے شور میں کیک کاٹا۔ کیک کاٹ کر تینوں نے ایک دوسرے کو کھلایا۔ خواتینوں حضرات، اچانک ظفر مراد نے سب کو مخاطب کیا تو ذرا ہی دیر میں وہاں سناٹا چھا گیا۔ سارم اور سارا نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دونوں اندازہ نہ کر سکے کہ وہ کیا اعلان کرنے والا ہے۔ خواتینوں حضرات، مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے، بس اس خوشی کے موقع پر ایک چھوٹا سا اعلان کرنا چاہوں گا۔ ہم بہت جلد ایک ٹی وی چینل لانے والے ہیں۔
उस चैनल का नाम सारा टीवी होगा और उसके एमडी मेरे बहनोई सारिम अली साहब होंगे। इस ऐलान ने सारा और सारिम दोनों को शशदर कर दिया। वहां मौजूद लोग भी चंद लम्हों के लिए खुशगवार हैरत में आए। इसके बाद जबरदस्त तालियों का शोर उठा। इस ऐलान के बाद जफर मुस्कुराता हुआ अपनी नशिस्त पर आ बैठा। आज की तकरीब का जिस खूबसूरत अंदाज में आगाज हुआ था, वैसे ही खूबसूरत अंदाज में वो अख्तिताम पजीर हुई। आज इस तकरीब को यादगार बनाने के लिए जफर मुराद ने कलीदी किरदार अदा किया। वो बिन बुलाए आया, सारा के नाम से टीवी चैनल का ऐलान किया और इस छोटे से पैकेट में उसने सारा को जो तोहफा दिया वो दोनों की सांसें रोकने के लिए काफी था। इस छोटे से पैकेट में करोड़ों का चेक था। उस चेक के साथ एक छोटा सा खत था। लिखा था, सारा बाजी, ये कारोबार जायदाद और असासों में से आपका हिस्सा है। इसे कबूल करके मुझे ममनून होने का मौका दीजिए। आपका जफरी। करोड़ों के इस चेक ने सारा को फिर रुला दिया। उसे अपना बाप टूट कर याद आया, जिससे कोई तवक्का ना थी उसने तवक्का से बढ़कर दे दिया था, और जिससे तवक्का थी उसने अपने प्यार से भी महरूम कर दिया था। काश डैडी आपने ऐसा ना किया होता। सारा ने फिर वो पैकेट खोला जो जफर ने सारिम को दिया था। इसमें एक हीरे लगी कीमती घड़ी और एक परफ्यूम निकला। सारिम ने दोनों चीजें देखकर बहुत खुशी का इजहार किया। इसके बाद सारा ने दूसरे तोहफे खोले। सब ने अपने अपने हिसाब से बड़े खूबसूरत तोहफे दिए थे। इस तरह तकरीब से फारिग होते होते 2 बज गए। तब सारिम ने अपने बेडरूम का रुख किया। खाला सज्जो और उसने मिलकर इधर उधर बिखरी चीजों को समेटा और फिर वो 5-10 मिनट में फारिग होकर अपने कमरे में दाखिल हो गई। पलटकर उसने दरवाजा बंद किया और मुस्कुराती हुई बेड की तरफ बढ़ी। सारिम बेड की पुश से टेक लगाए बड़े इत्मीनान से पांव फैलाए नींद दराज था। सारा उसके सामने बेड पर बैठ गई और सारिम को यक टेक देखने लगी। सारिम को लगा जैसे वो भी रोने वाली हो। देखो भाई, अब रोने की नहीं हो रही है। सारिम ने उंगली उठाकर उसे खबरदार किया। नहीं, मैं नहीं रोऊंगी, हरगिज नहीं रोऊंगी। अब तो तुम रोगे। सारा ने अजीब बात कही। मैं क्यों रोऊंगा? मुझे क्या पागल समझा है? सारिम ने मुस्कुरा कर कहा। समझा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है चंद लम्हों बाद तुम पागल हो जाओ। सारा ने फिर बात उलझाई। सारा, फजूल बातें मत करो। देखो आज की तकरीब कैसी शानदार, जानदार और यादगार थी। तुम्हारे नाम का टीवी चैनल खुल गया। तुम करोड़ों की मालिक बन गई। अब तुम इस यादगार रात को फूलों से सजा दो। सारिम ने बेकरार होकर उसका हाथ पकड़ा। हाँ सारिम, मैं यही करने वाली हूँ। मैं इस रात को महकाऊंगी। तो मेरी बात तो सुनो। सारा उसके करीब आ गई। हाँ सुनाओ। सारिम ने बड़े प्यार से कहा। मुझे दीवाना बनाओ। और जब सारा ने उसके करीब सरगोशी की तो वो बेसाख्ता चीख पड़ा। नहीं। नहीं क्यों? ये बिल्कुल सच है। सारिम, तुम बाप बनने वाले हो। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। आज तूने मुझ पर अपने कर्म की बारिश कर दी। आज इकट्ठी इतनी खुशियां दे दी मेरे मालिक, कहीं मैं खुशी से मर ना जाऊं। सारिम की आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। उसे रोता देखकर सारा भी अपने आंसू रोक ना सकी। वो दोनों गले लगकर बहुत देर तक रोते रहे। ये खुशी ऐसी थी कि उस पर जितने आंसू बहाए जाते कम थे। ये आंसू खालिक कायनात के हुजूर बेहतरीन नजराना था। जब कुछ आंसू थमे, दिल कुछ काबू में आया तो सारिम ने सारा के आंसू पोंछते हुए पूछा। सारा, ये खुशी की खबर कब कंफर्म हुई? कल। मैं 2 दिन पहले परवीन बाजी के साथ क्लिनिक गई थी। डॉक्टर ने टेस्ट लिखा ताकि किसी किस्म का शुबा न रहे। कल टेस्ट रिपोर्ट लेकर गई तो डॉक्टर ने इस खुशखबरी को पक्का कर दिया। सारिम, मेरा जी चाहा कि तुम्हें फोन पर ही ये खुशखबरी सुना दूं। बड़ी मुश्किल से खुद को रोका, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम्हें शादी की सालगिरह पर ये हसीन तोहफा दूं। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। हैरत है कि तुमने इतनी बड़ी खबर कैसे हजम कर ली। वो वाकई हैरत ज़दा था। सारिम, बड़ी मुश्किल से हजम की है। कई बार ईमान टकमकाया। जब भी तुम्हारी शक्ल देखती सबर का दामन हाथ से छूटता नजर आता। हर बार मैं सबर के दामन को समेट लेती। आज जब मैंने तुम्हें तोहफा दिया तो यकीन जानो बड़ी मुश्किल से खुद को रोका। यूं लग रहा था जैसे बेख्तियार जुबान से ये खुशी की खबर फिसल जाएगी, लेकिन मैंने अपनी कुव्वत इरादी को मजबूत किया। दिल बेकरार को समझाया, बस कुछ देर और ठहर। सारा, तुमने ये इंतहाई खुशी की खबर ना सुनाकर निहायत बेवकूफी का सबूत दिया। सारिम के लब पर शिकवा आया। हाय सारिम, तुम्हें मेरी ये बात बुरी लगी है? सारा ने चौंक कर उसका चेहरा देखा। तो और क्या? सारिम ने उसकी नाक पकड़कर खींची। अगर मुझे कल पता चल जाता तो आज मैं सारा दिन नाचा नाचा फिरता। तो अब नाच लो। सारा ने उसके बालों को मुट्ठी में भर कर एक अदा से कहा। अब तो मैं तुझे नचाऊंगा। सारिम ने हंस कर कहा। चलो ऐसा करते हैं, दोनों नाचते हैं। सारा उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोली। ओए खबरदार, जो नाचने का नाम लिया भाई, अब तो बड़ी एहतियात की जरूरत है। सारिम को जैसे कुछ ख्याल आ गया, वो एकदम संजीदा हो गया। उसकी संजीदगी देखकर सारा को बेख्तियार हंसी आ गई। मेरे भोले बादशाह, इस तरह तो तुम मेरी जान अजाब में डाल दोगे। अच्छा ये बताओ, ये खबर खाला सज्जो को मालूम है?
सारिम ने पूछा। नहीं, सिर्फ परवीन बाजी के अलावा किसी को नहीं मालूम। उनको भी मैंने कसम दे दी थी कि और किसी को भी ना बताएं। सारा ने बताया। चलो फिर जाओ, खाला सज्जो को बता कर आओ, सारिम ने कहा। सुबह बता दूंगी, अब वो सो गई होंगी, सारा बोली। अभी कहाँ सोई होंगी, सारिम ने कहा। अगर सो भी गई होंगी तो कोई बात नहीं, उन्हें उठाकर सुनाओ। या अल्लाह रहम, सारा ने उठते हुए कहा। मेरी शौहर को दीवाना होने से बचा। सारिम हंसने लगा। जब वो कमरे से निकल गई तो उसने जब्बार नासिर को उसके मोबाइल पर फोन किया। बेटे तुम कहाँ हो? अब्बा मैं बेडरूम हूँ। क्या कुछ आगे का हाल भी सुनाऊं? जब्बार नासिर ने हद मामूल खुशमिजाजी का सबूत दिया। ओ यार, तू क्या हाल सुनाएगा? मुझसे आगे का हाल सुन, सारिम ने हंसकर कहा। क्या हुआ? भाभी ने तुझे कमरे से बाहर निकाल दिया है क्या? जब्बार ने मजाक किया। अपनी बकवास बंद करेगा तो कुछ बोलूंगा ना, सारिम ने संजीदगी से कहा। अच्छा जल्दी कर, मुझे अब नींद आ रही है, जब्बार नासिर जमाई लेते हुए बोला। यार बड़ी जबरदस्त खबर है, सारा ने अभी अभी मुझे बताया है कि तू ताया अब्बू बनने वाला है। अरे वाह, जबरदस्त, जब्बार नासिर ने खुशी भरे लहजे में कहा। ठहर, मैं तेरी भाभी को सुनाता हूँ ये खबर। अरे ओ महनाज, अरे सुनो, अपना सारिम बाप नहीं, मैं ताया अब्बू बनने वाला हूँ और तुम ताई अम्मी। हाँ हाँ, फोन झपटो मत, मैं देता हूँ तुम्हें। लो भाई, सारिम अपनी भाभी से बात कर। जब्बार नासिर बहुत खुश था, महनाज बहुत खुश थी। इस खबर ने खाला सज्जो को भी बहुत मुतासिर किया। उसने आंसू भरी दुआओं से सारा की चटाचट बुलाई ली और दुआ दी, अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। सारिम का जब हाल था, वो बच्चे की खबर सुनकर खुद बच्चा बन गया था। उसका बस नहीं चलता था कि अखबार में पूरे सफे का इश्तिहार लगवा दे, सिनेमा पर स्लाइड चलवा दे। वो क्या करे क्या ना करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बेशक ये एक बहुत बड़ी खबर थी। 7 साल बाद बच्चे की आमद की खबर किसी भी बाप को पागल कर देने के लिए काफी होती है। सारा को उम्मीद तो थी कि ये खबर सारिम को बेहाल कर देगी, लेकिन उसे ये उम्मीद हरगिज न थी कि वो दीवाना हो जाएगा, क्योंकि इन 7 सालों में सारिम ने बच्चे के मसले पर कभी जज्बाती अंदाज इख्तियार नहीं किया था, जबकि सारा इस मसले पर अक्सर जज्बाती हो जाती थी। उसे बच्चे की शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन अब जब ये नवीद मुसर्रत आई तो सारिम हाल से बेहाल हो गया, जबकि सारा खुशी के इज़हार में अतदाल में रही। सारा जब भी बच्चे के मसले पर बेचैन होती और वो चाहती कि टोने टोटकों का सहारा लिया जाए, तो सारिम इन चीजों की कभी हौसला अफजाई न करता। वो कहता, देखो सारा, हम दोनों ने अपना तिब्बी मुआयना एक जगह नहीं कई जगह और कई बार करा लिया है। हम दोनों फिट हैं। अगर हमें खुशी नहीं मिल रही है तो ये सब ऊपर वाले की तरफ से है। जब उसने देना होगा तो कोई न रोक सकेगा, और अगर उसने हमारी किस्मत में नहीं लिखा तो फिर ये टोने टोटके धरे रह जाएंगे। कोई आमिल पीर कुछ ना कर सकेगा, बस हमें दुआ करना चाहिए। सारे में एक बात बताओ, देखो सच बताना। हाँ पूछो। सच बताऊंगा। तुम जानती हो कि मुश्किल ही से झूठ बोलता हूँ, सारिम ने कहा। क्या तुम्हें बच्चे की ख्वाहिश नहीं? सारा ने पूछा। है, लेकिन मैं आमिलों और आस्थानों के चक्कर लगाने के लिए तैयार नहीं। मांगना उससे चाहिए जो किसी का मोहताज न हो। सारिम ये बात बड़े यकीन और पूरे इत्मीनान से कहता, लेकिन उसकी बात सुनकर सारा को चैन न आता। सब जानते हैं कि औरत औलाद के मामले में किस कदर हसास होती है। ऊपर से सास नंदे सुलगते मामले को ऐसा शोला दिखाती हैं कि बाज़ औकात बे औलाद औरत वो कुछ करने को तैयार हो जाती है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस मामले में जाली पीर फकीर बहुत खतरनाक रोल अदा करते हैं। बाज़ औकात ये औलाद से महरूम औरत को उसकी इज्जत से भी महरूम कर देते हैं। सारा पर तो खैर ससुराल का कोई दबाव न था। उसके ससुर आज़म अली एक बेमिसाल आदमी थे। वो उसकी शादी के बाद 1 साल जिंदा रहे। अगर वो आज भी जिंदा होते और उसे औलाद से महरूम देखते तो सारा को उम्मीद थी कि वो हरगिज ऐसी कोई बात ना करते जिससे उसका दिल दुखता। सारिम को इस मसले पर किसी किस्म की कोई गैर मामूली परेशानी न थी। इतनी परेशानी जरूर थी कि अगर इन दोनों में से किसी में कोई तिब्बी नुक्स हो तो उसका इलाज करा लिया जाए। बार बार के तिब्बी मुआयनों के बाद भी इन दोनों में कोई नुक्स नजर ना आया तो सारिम मुतमईन होकर बैठ गया, लेकिन सारा को इत्मीनान न था। उसे बच्चे की शदीद ख्वाहिश थी। जब ये लोग नाज़ाबाद में रहते थे तो सारा रोज ही कहीं से कोई खबर ले आती थी। वो बड़े पुरुमीद लहजे में इस खबर को सारिम को सुनाती। सारिम आज नईमा बाजी आई थी। वो एक पीर का जिक्र कर रही थी। वो ऐसा तावीज़ देते हैं कि बेऔलाद औरत को औलाद नसीब हो जाती है। कभी नफीसा बाजी के जरिए कोई खबर आती, एक आमिल हैं, वो बेऔलाद औरत को 7 दिन अपने पास हाजिरी के लिए बुलाते हैं। 7वें दिन एक चुटकी राख खिलाते हैं तो वो औरत साहिब औलाद हो जाती है। लेकिन शर्त यह है कि वो पहला बच्चा खुद ले लेते हैं। वो इस बच्चे का क्या करते हैं ये बात कोई नहीं जानता। सारिम को इस तरह की खबरें सुनकर बड़ा गुस्सा आता। वो सारा को सख्त लहजे में तंबीह करता, देखो सारा, मेरी एक बात बहुत अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो। अगर तुम इस मसले पर किसी पीर फकीर के चक्कर में पड़ी तो याद रखो हाथ सिवाय बर्बादी के कुछ ना आएगा। मुझसे पूछे बगैर किसी औरत के चक्कर में आकर कोई गलत कदम ना उठा बैठना। अरे नहीं सारिम, मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर हरगिज कोई कदम नहीं उठाऊंगी।
वैसे सारा तुम्हें परेशानी क्या है? अगर औलाद नहीं है तो ना सही हमारी कौन सी जायदाद है इसके लिए हमें वारिस चाहिए? ना ही हमारी सास जिंदा है जो मुझे दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दे। मेरी तरफ से भी तुम पर कोई दबाव नहीं। सारिम उसे समझाने की कोशिश करता। ये बिल्कुल सही बात है कि मुझ पर किसी किस्म का दबाव नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि कौन सा बाप ऐसा है जिसे औलाद की ख्वाहिश ना हो। मुझे औलाद की ख्वाहिश जरूर है, लेकिन मैं अपने जिगर के टुकड़े को किसी के हवाले करने के लिए तैयार नहीं। मैं खुद भी कभी इसके लिए राजी न होंगी, सारा ने यकीन से कहा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि बेऔलाद औरतें क्या कुछ करने के लिए तैयार हो जाती हैं। आए दिन अखबारात में आता रहता है जाली पीर फकीर किस तरह उनको इज्जत से महरूम कर देते हैं। ये औरतें हर तरह के अमल करने के लिए तैयार हो जाती हैं। कब्रिस्तान में बैठकर वजीफा पढ़ने बैठ जाती हैं। अमल के लिए अस्पतालों से किसी पहलू दही के बच्चे के कपड़े उठा लेती हैं। औलाद नरीना के लिए बच्चे बदलवा लेती हैं। ऐसे ऐसे गुनाह के काम करती हैं कि तौबा भली। सारा, हमें इस किस्म का कोई काम नहीं करना। ये बात अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठा लो कि औलाद इसी वक्त होगी जब अल्लाह चाहेगा। मुझे दुनिया का कोई आदमी पीर फकीर आमिल बुजुर्ग वलीउल्लाह साहिब औलाद नहीं बना सकता जब तक ऊपर वाला न चाहे। अगर उसने हमारे मुकद्दर में औलाद लिख दी है तो होकर रहेगी। मैं नाउमीद नहीं। मायूसी तो वैसे भी कुफ्र है। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और अल्लाह पर कामिल यकीन रखना चाहिए। सारिम ने पूरी संजीदगी से कहा, वो हमें जरूर औलाद से नवाजेगा। उस दिन के बाद से सारा ने ये बात गिरह में बांध ली। मुसम्मम इरादा कर लिया कि औलाद के सिलसिले में किसी इंसान से रुजू नहीं करना। देने वाला सिर्फ अल्लाह है। जब उसे कोई चीज देना होती है तो सारे वसाइल उसके सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। इन 7 सालों में इस मुसम्मम इरादे के बावजूद कई बार ऐसे नाजुक मुकाम आए कि सारा के दिल में किसी औरत की तरकीब देने पर किसी आमिल या पीर फकीर के दर पर हाजिरी देने की ख्वाहिश उभरी, लेकिन सारिम का यकीन मुहक्कम देख कर उसने इस तरकीब को दिल से निकाल दिया। अब उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर वक्त लब पर यही दुआ थी कि ऐ कायनात के खालिक हमें साहिब औलाद बना। हर वो दुआ जो दिल से निकले असर रखती है। सारा तो अब दुआ मांगते मांगते भी इख्तियार रोक पड़ती थी। बिलाखिर वो लम्हा आ गया कि उसकी दुआ कबूल हो गई। इस खबर ने सारिम के दिल में हलचल मचा दी थी। जज्बात का लावा किसी आतिशफिशां की तरह फट गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी इस खुशी को किस किस के साथ शेयर करे। खाला सज्जो को बता दिया था, जब्बार नासिर को ये खुशखबरी सुना दी थी, अब क्या करे। जफर मुराद को बताए, भाई तुम मामू बनने वाले हो। रात का आखिरी पहर था। उसने जफर को जगाना मुनासिब ना समझा। अगर दिन का वक्त होता तो वो खैर मोहसिन नगमी को जरूर सुनाता। जाहिर है वो जवाब में यही कहते, कहाँ लिखा है। सारे उस रात सो नहीं सका। वो सारा से बातें करता रहा। वो अब इसकी तरफ से बड़ा फिक्रमंद हो गया था। सबसे बड़ी फिक्र इस आसिफ ज़दा मकान की थी। क्या सारा का इस हालत में इस मकान में रहना मुनासिब होगा? वो नहीं चाहता था कि सारा को इस दौरान जरा सी भी कोई जहनी या जिस्मानी परेशानी हो। इस घर में तो हर वक्त की परेशानी थी। किसी भी वक्त कुछ हो सकता था और ऐसा हो सकता था कि आदमी के तसव्वुर में ना आए। सारा, मैं सोच रहा हूँ कि अब ये घर छोड़ दूं, सारिम ने बताया। क्यों आखिर? सारा ने सादगी से पूछा। ये आसिफ ज़दा घर है। इस घर में अब तुम्हारा रहना मुनासिब नहीं। वो बोला, ये आसिफ ज़दा जरूर है, लेकिन कितना मुबारक है। ये भी तो सोचो, ये खुशी हमें इसी घर में मिली है। सारा ने एक नए पहलू पर रोशनी डाली। ये घर मुबारक है? सारिम हैरान होकर बोला। सारा, तुम्हें शायद याद नहीं रहा, ये घर 3 बंदों की जान ले चुका है। जिस बंदे ने इसे इतने शौक से बनवाया उस बेचारे को यहाँ रहना नसीब भी ना हुआ। इस घर ने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। नुकसान पहुँचाने वाली यहाँ बसने वाली मखलूक है। इस घर को तो खैर से मैं भी छोड़ना नहीं चाहता। मैं किसी से डर कर भागने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे तुम्हारा देखना है। तुम कहीं कहीं उलझन का शिकार न हो जाओ। जहनी दबाव से तुम्हें कोई नुकसान न पहुँच जाए। अल्लाह ने हमें जो तोहफा अता किया है, आखिर इसकी हिफाजत भी तो करना है। सारिम फिक्रमंद था। जिसने हमें तोहफा दिया है वही इसकी हिफाजत भी करेगा। हम क्यों घबराएं? सारा ने हंसते हुए कहा। अच्छा चलो देखते हैं। अभी परसों बाबा कम्बल भी आने वाला है। मुमकिन है वो शर्री मखलूक को काबू में कर ले। वो अपना एक हाथ गंवा कर भी पुरजोश है। अजीब व गरीब बंदा है। सारे, मुझे तो उसे देख कर ही डर लगता है। वो तो खुद शर्री मखलूक दिखाई देता है। सारा सहम ज़दा होकर बोली, हाँ ना, वो खुद को बनमानस कहता है। उसका ख्याल है कि शर्री मखलूक शाह साहब जैसे भले मानस के काबू में आने वाली नहीं है। ये तो उसी के काबू में आ सकती है। हो सकता है जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, हो सकता है इस शर्री मखलूक को ये शर्री मखलूक ही काबू में करे। देखो क्या होता है, सारिम ने जवाई लेते हुए कहा। चलो अब सो जाएं, सुबह होने वाली है। अरे ये क्या? सारा फौरन उठकर खड़ी हो गई। उसकी नजरें सारिम की कमीज के दामन पर थी। क्या हुआ? सारिम ने घबरा कर पूछा।
तब फिर फौरन ही उसकी नजर अपने दामन पर गई। वो उछल कर खड़ा हो गया। उसके दामन पर अचानक जर्द रंग के छींटे नमूदार हो गए थे। सारा, ये क्या मुसीबत है? ये छींटे कहाँ से आ गए? सारिम परेशान होकर बोला। पता नहीं, कुछ देर पहले तो तुम्हारी कमीज साफ थी, बस चंद सेकंडों में ही कहीं से नमूदार हो गए। ठहरो, मैं तुम्हें दूसरी कमीज देती हूँ, इसे उतार दो। सारे ने अलमारी की तरफ बढ़ते हुए कहा। इस तरह तो मेरी सारी कमीजें बर्बाद हो जाएंगी। सारिम बोला। हो जाने दो, कंजूस आदमी, तुम्हारे पास कपड़ों की कमी है क्या? सारे ने उसे छेड़ा। कपड़ों की तो खैर कमी नहीं, लेकिन अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा फिर तो मैं तहमत बांधने पर मजबूर हो जाऊंगा। सारिम हंस कर बोला। सारे ने उसे दूसरी कमीज दी। सारिम ने वो कमीज उतार कर उसके हवाले की। सारे ने उस छींटे ज्यादा कमीज को डाइनिंग टेबल के साथ पड़ी एक कुर्सी पर लटका दिया। ये सब उस शरीर मखलूक के बारे में जिक्र का नतीजा है, सारे ने कहा। चलो दफा करो, सारिम ने लापरवाही से कहा। ये सब चलता रहेगा भाई, अब तुम मेरी भूख का इंतजाम करो। भूख तो खैर मुझे भी लगने लगी है, सारा ने हंसते हुए कहा। चलो फिर ऐसा करते हैं कि नाश्ता करते हैं और फिर सो जाते हैं। ओके मैडम, सारिम ने बड़े मौजमाना अंदाज में कहा। आप जरा एक खस्ता सा पराठा बना लेंगी या खाला सज्जो को उठाना पड़ेगा? सारिम ने पूछा। कोई नहीं, आज मैं तुम्हें अपने हाथ का पराठा बनाकर खिलाऊंगी, तुम भी क्या याद करोगे? फिर मैं हथौड़ा छेनी अपने पास रख लूं? अब छेड़ने की बारी सारिम की थी। हथौड़ा तो चलो समझ में आ गया कि छेनी क्या होती है? सारे ने बड़ी मासूमियत से पूछा। हथौड़े से जर्ब लगाई जाती है और छेनी के जरिए किसी सख्त चीज को काटा जाता है, मेरी जाहिल बीवी। सारिम हंस कर बोला। ओके, खबरदार जो मुझे जाहिल कहा, मेरे नाम से टीवी चैनल शुरू होने वाला है। सारे ने अपनी उंगली उसकी आंखों के सामने हिलाई। चैनल तो उस वक्त शुरू होगा जब एमडी सारिम इसकी इजाजत देंगे। वैसे जफरी पर भी मुझे हैरत है, मुझसे पूछे बगैर तुम्हें एमडी बना दिया। सारे ने किचन में दाखिल होते हुए एक अदा से कहा। सारिम किचन के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। जाने सारिम को अचानक क्या हुआ कि वो सारा की बात सुनकर एकदम गुमसुम सा हो गया। उसकी नजरों के सामने अचानक करोड़ों का चेक आ गया और सारा का जुमला उसके दिल में तीर की तरह तराजू हो गया। सारा को उम्मीद थी कि वो इस जुमले के जवाब में कोई तेज सा जवाब देगा और उसके तेज जवाब को वो एंजॉय करेगी, लेकिन इधर से कोई जवाब ना आया। उसने मुड़कर सारिम की तरफ देखा। वो किचन के दरवाजे पर खामोश खड़ा उसे अजीब से अंदाज में देख रहा था। अरे! सारा उसकी आंखों में एक अजीब सी कैफियत देखकर परेशान हो गई। उसे फौरन अंदाजा हो गया कि सारिम ने उसकी बात को संजीदगी से लिया है। वो दौड़कर उसके करीब आई और उसका हाथ पकड़कर बोली। क्या हुआ? सारा, तुम ठीक कहती हो, जफरी को वाकई तुमसे पूछना चाहिए था। खैर से अब तुम करोड़ों की मालिक हो, तुम्हारा भाई इस शहर का बड़ा बिजनेसमैन है, सारिम ने संजीदगी से कहा। उसके लहजे में एक महरूमी थी। अच्छा एक मिनट, सारा एक कहकर तेजी से बेडरूम में चली गई। फौरन ही वापस पलटी। उसके हाथ में एक लिफाफा था। वो लिफाफे से चेक निकालती हुई किचन में आई और माचिस जलाते हुए बोली। सारिम, मैं तुम्हारे और अपने दरमियान चांदनी की दीवार नहीं आने दूंगी। मैं इस चेक को अभी नजर आतिश किए देती हूँ। सारिम, खुदा की कसम ये बात मैंने मजाक में कही थी, तुमने संजीदगी से ले ली। ऐसा तो हमारे दरमियान कभी नहीं हुआ। सारिम, मुझे ऐसा सरमाया हरगिज नहीं चाहिए जो तुम्हें मुझसे दूर कर दे। लो, मैं आग लगाई देती हूँ इस सरमाए को। सारिम तेजी से आगे बढ़ा और इससे पहले कि वो चेक को शोला दिखाती, उसने उसके हाथ से चेक झपट लिया और बोला। ये क्या बेवकूफी है? मुझे नहीं चाहिए दौलत सारिम, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, सारा ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में कहा। ठीक है, ठीक, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। सारिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर मेरे मजाक को गलत अंदाज में क्यों लिया? सारा ने शिकवा किया। गलती हो गई माई बाप, हमका माफी दे दो सरकार, नहीं तो हम एक की जगह 4 पराठे खाएंगे, सारिम ने मस्खरेपन से कहा। क्या बात है तुम्हारी? सारा ने उसे तिरछी नजरों से देखा। ये तुम मर्दों को हर चीज 4 क्यों चाहिए होती है? बीवियां मांगोगे 4, पराठे खाओगे 4। हमने तो 4 मांगी हैं, अब तुम कुछ दिन के बाद मांगोगी अचार, सारिम बड़े मायने खेज लहजे में बोला। सारिम, मारूंगी तुमने फजूल बात की तो, सारा ने शर्माते हुए कहा। हाय सारा, मैंने तुम्हें शर्माते बड़े अरसे के बाद देखा है यार, तुम तो शर्माती हुई बड़ी प्यारी लगती हो, जरा एक बार और शर्माना। अच्छा बस अब चुप हो जाओ, मुझे नाश्ता बनाने दो, सारा ने खुशगवार अंदाज में कहा। बस फिर इसी तरह दोनों ने हंसते मुस्कुराते शगुफ्ता अंदाज में बातें करके नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद वो घर से बाहर निकल आए। सुबह का वक्त था, ठंडी खुशगवार हवा चल रही थी। सूरज अभी अंधेरे की चादर में मुंह छुपाए हुए था। ये दोनों अपने घर के गार्डन में टहलने लगे। उनके घर के चारों तरफ हरियाली थी, फूलों के पौधे थे, सरसब्ज घास थी। सारिम सुनो, अचानक सारा को टहलते टहलते कुछ ख्याल आया। हाँ बोलो, सारिम ने कहा। सारिम, तुम इस रकम से कोई बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? सारा ने तजवीज पेश की। कौन सी रकम से? सारिम ने पूछा। अरे यही जो जफरी ने चेक की सूरत में दी है, सारा बोली। नहीं सारा, इस रकम पर मेरा हक नहीं, ये तुम्हारी है। सारिम, मैं और तुम क्या अलग अलग हैं? सारा ने शिकवा किया। नहीं, हम एक हैं, सारिम ने उसे करीब करते हुए कहा।
लेकिन ये रकम मेरे लिए किसी सांप से कम नहीं। अच्छा, फिर ऐसा करती हूँ, ये चेक मैं जफरी को वापस कर देती हूँ, सारा ने इत्मीनान से कहा। तुम्हारी मर्जी, सारिम ने खुशदिली से कहा, जो चाहे करो। बस मैं यही करूंगी कि शुक्रिया के साथ इस रकम को वापस कर दूंगी। तुम जानते हो कि मुझे पैसे से वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं। जो जिंदगी तुमने मुझे दी है वो मेरे लिए इंतहाई खुशगवार है। सारा ने ये बात बड़ी सच्चाई से कही। सारिम जानता था कि सारा ये बात दिल की गहराइयों से कह रही है। मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ। सारिम वाकई खुश था। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि मैंने तुम्हें कैसी जिंदगी दी है। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें महलों से निकाला है। ये मेरी खुशनसीबी है कि महलों में रहने वाली मेरे साथ झोपड़े में रह रही है और खुश है। मैं अपनी खुशबख्ती पर जिस कदर नाज करूं कम है। ओह माय गॉड, सारिम जवाब नहीं तुम्हारा। सारा ने ताली बजाई। क्यों, क्या हुआ? सारिम ने वजाहत चाही। भाई तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। सारा ने फिर उलझाया। क्या मतलब? सारिम ने सवालिया नजरों से देखा। तुम्हें तो अपनी ड्रामा सीरियल के सारे मुकालमे याद हैं। वाह, क्या फरफर सुनाए हैं। सारा इतना कहकर जल्दी से पीछे हट गई। सारिम ने आगे बढ़कर उसके रेशमी बाल अपनी मुट्ठी में भर लिए। जाती कहाँ है भूतनी? सारिम, नहीं, मेरे बाल छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, वो चीखते हुए बोली। अब तुम जरा घर में चलो, मैं तुम्हें देता हूँ माफी अच्छी तरह से। सारिम उसके बाल पकड़े पकड़े बेडरूम में ले आया और फिर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सारा नहीं नहीं कहती रह गई। सारा ने उसी शाम जफर मुराद को अपने घर बुलाकर वो चेक वापस कर दिया। क्यों सारा बाजी? जफर मुराद ने चेक को देखकर हैरत से कहा। बात यह है मेरे भाई के इतने ढेर सारे पैसों का मैं क्या करूंगी? खामखा डाकू मेरे पीछे लग जाएंगे, वो हंस कर बोली। सारा बाजी प्लीज मजाक मत करें, जफर मुराद संजीदा होकर बोला। सारिम भाई आप समझाएं ना इन्हें। नहीं जफर, ये तुम बहन भाई का मामला है, मेरा इस मसले से कोई ताल्लुक नहीं। सारिम ने साफ अपना दामन बचा लिया। सारा बाजी, ये आपका हक है। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है और ये वो हक है जो आपको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त डैडी का होल्ड था। मैं उनके सामने बेबस था। अब मैं बाख्तियार हूँ और खुशी से जायदाद और असासों में जो हिस्सा बनता है वो मैंने चेक की सूरत में दे दिया है। आप बराए करम इसे वापस ना करें। मैं आपको जो दे चुका वो दे चुका, जफर ने दो टोक लहजे में कहा। अच्छा जफरी, फिर ऐसा करो, इस रकम को मेरी तरफ से बिजनेस में लगा दो। बल्कि यूं करो, तुमने मेरे नाम से जो टीवी चैनल शुरू करने का ऐलान किया है, ये रकम उसमें लगा दो। मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना लो। सारा ने बड़ी संजीदगी से तजवीज पेश की। वो नहीं चाहती थी कि उसके भाई का दिल दुखे। जफर मुराद को ये बात पसंद आई। वो बोला, ठीक है बाजी, ऐसा हो सकता है। ये काफी सरमाया है। इस सरमाए को आपकी तरफ से टीवी चैनल में लगाई देता हूँ। फिर सारिम भाई जिस तरह चाहें चैनल को चलाएं। हाँ जफर, एक बात और, सारा ने उंगली उठाकर कहा। जी बाजी बताइए। जफर ने उसे तदब्बुर से देखा। सारा टीवी के कोई ओहदेदार नहीं बनना चाहते। ये कहते हैं कि मेरे अपने बहुत फकीरे हैं। सारा ने बात शुरू की। जफर मुराद ने फौरन समझ लिया कि सारिम उसका सरमाया कबूल करने को तैयार है और ना किसी किस्म का ओहदा। तब उसने कुछ सोचकर एक तजवीज पेश की। फिर सारा बाजी, एक काम करते हैं, तमाम तफरी प्रोग्राम का मुआहिदा सारिम भाई से कर लेते हैं। ये अपनी तैयार करदा सीरियल कहीं तो चलाएंगे, कहीं और ना चलाएं, बस सारा टीवी को दे दें। हम मुंह मांगे पैसे देंगे। मुझे मंजूर है। इससे पहले कि सारा कुछ जवाब देती, सारिम ने खुशी से इस तजवीज को कबूल कर लिया। वो अपनी मेहनत से कमाएगा, अपनी मर्जी से काम करेगा, ससुराल का उस पर कोई एहसान ना होगा। उसके जहन के किसी गोशे में ये बात बैठ गई थी कि सारा के बाप भाई से किसी किस्म की कोई मदद नहीं लेनी। जो करना है अपनी कुव्वत बाजू से करना है। वो नहीं चाहता था कि कोई उससे कहे बीवी के पैसे से खेल रहा है। ऐसी कोई बात सुनना उसे गवारा न थी। वो इस मामले में बहुत हसास था। सारा खुश थी कि ये मामला बड़ी खुश उसलूबी से तय हो गया था। जफर भी खुश था और सारिम भी अपनी जगह मुतमईन था। जफर के जाने के बाद असरार नासिर आ गया। आज पीर था। कल मंगल की रात से बाबा कंबल ने यहाँ डेरा जमाना था। वो कल का प्रोग्राम बनाने आया था। मैं कल रात को बाबा कंबल के साथ सीधा कब्रिस्तान से यहाँ आऊंगा। बाबा जी ने कहा है कि हम सारिम साहब के घर में दाखिल नहीं होंगे, बल्कि बाहर से ऊपर जाएंगे। ठीक है, फिर मैं ऐसा करता हूँ कि ऊपर जाने के लिए एक दरवाजा बाहर की जानिब भी है। मैं वो दरवाजा खोले देता हूँ और बाहर से ताला बंद करके चाबी तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। जब चाहे आकर ऊपर चले जाना। बाहर का छोटा गेट भी तुम्हें खुला मिलेगा। सारिम ने कहा। अगर आप छोटे गेट में ताला डालकर चाबी मुझे दे दें तो बहुत अच्छा हो। असरार बोला। ठीक है, ये कोई मसला नहीं। सारिम ने कहा। हाँ ये बताओ, बाबा साहब 7 दिन यहाँ रहेंगे, उनके खाने वगैरह का क्या होगा? बाबा जी वजीफे के दौरान में खास खाना खाते हैं, आप खाने वगैरह की फिक्र मत करें। और तुम्हारे खाने का क्या होगा? सारिम ने दोबारा पूछा। मैं मुस्तकिल बाबा जी के साथ रहूंगा। मैं अपने खाने का खुद बंदोबस्त कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। असरार ने उसे हर फिक्र से आजाद कर दिया।
सबसे अच्छी बात तो ये थी कि बाबा कंबल का रास्ता बिल्कुल अलग हो गया था। वो दोनों अब घर के बाहर रहेंगे। घर के अंदर उनकी आमदोरफ्त होती तो सारिम को परेशानी लाहक रहती। इस बनमानस से सारा और खाला सज्जो दोनों ही खौफ खाती थी। सारिम ने दीने की बैरूनी दरवाजे और छोटे गेट की चाबियां असरार के हवाले कर दी और लाउंज में खुलने वाले दीने के दरवाजे को उसने मुकफ्फल कर दिया। अब बाहर से कोई अंदर घर में नहीं आ सकता था। असरार जाने लगा तो सारिम उसे मेन गेट तक छोड़ने आया। असरार जाते हुए बोला, हाँ सारिम भाई, एक बात तो रही गई। वो क्या? सारिम ने पूछा। बाबा जी ने आपको मुबारकबाद भिजवाई है, असरार ने मुस्कुराते हुए कहा। किस चीज की भाई? सारिम की समझ में ना आया। 7 साल के बाद आपको जो जबरदस्त खुशी मिली है उस बात की, असरार ने ढके छुपे अंदाज में कहा। सारिम की समझ में ना आया कि ये खुशी की खबर बाबा जी तक किस तरह पहुंची। उसने कुछ सोच कर पूछा, बाबा साहब को ये खबर किसने दी? मुझे नहीं मालूम, असरार ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि तुमने दी, सारिम बोला। नहीं, मैं कैसे देता, मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं था, बाबा जी की जुबानी ही मालूम हुआ। अच्छा, हैरत है। सारिम ने असरार की तरफ मशकूक नजरों से देखा। असरार उसे हैरत ज़दा छोड़कर रुखसत हुआ। सारिम सोचता ही रह गया कि आखिर ये अंदर की बात बाबा कंबल तक किस तरह पहुंची। उसे शुबा था कि यह खबर उसे असरार के जरिए मिली और असरार ने यह खबर अपनी भाभी की जुबान से सुनी, लेकिन असरार तो जाते हुए कह गया था कि यह खबर उसने बाबा कंबल की जुबानी ही सुनी थी। इसका मतलब है कि बाबा कंबल तो बड़े कमाल का आदमी है। बाबा कंबल पर उसका एतकाद सवा होने लगा। जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। कब्रिस्तान में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। बाबा कंबल एक दूसरे से जुड़ी कब्रों से बचता बचाता कभी उन पर चढ़ता, फलांगता, हाथों में एक छोटी टॉर्च दबाए बड़ा चला जा रहा था। असरार उसके साथ था, लेकिन बाबा कंबल जिस तेजी से कब्रों पर चढ़ता उतरता किसी नामालूम समत को जा रहा था, असरार का बावजूद कोशिश के उसके साथ चलना दूभर था। अगरचे टॉर्च उसके हाथ में भी थी, लेकिन बेक वक्त कब्रों और बाबा कंबल पर नजर रखना उसके बस की बात न थी। कई दफा वो गिरते गिरते बचा था। उसे खदशा था कि कहीं किसी टूटी खबर में उसका पांव न फंस जाए। वो इस तसव्वुर से ही कांप जाता था। बाबा कंबल के साथ रहकर उसे अजीब और गरीब तजुर्बात से वास्ता पड़ा था। अब वो जान गया था कि काला इल्म सीखना कोई आसान काम नहीं। अपनी जात की नफी करके शैतान की जात में जम होना पड़ता है। फिर वो काम करना पड़ता है कि रूह भी ठिठर कर रह जाए। चलते चलते अचानक असरार को एहसास हुआ कि बाबा कहीं गायब हो गया है। रात के 11 का अमल, अंधेरी रात, कब्रिस्तान का सन्नाटा, दूर दूर तक धब्बों की सूरत, कब्रें ही कब्रें। वो चलते चलते ठिठक कर रुक गया और रोशनी जमीन पर डाली तो उसे एहसास हुआ कि वो किसी की कब्र पर खड़ा है। वो जल्दी से नीचे उतरा। फिर उसने एक तरफ खड़े होकर चारों तरफ टॉर्च घुमाई। टॉर्च की महदूद रोशनी उसे आसपास की चंद कब्रों के हाल के सिवा कुछ और ना बता सकी। बाबा जी, असरार ने सहम कर आवाज लगाई। हाँ, क्या है? अचानक एक करख्त आवाज सुनाई दी और फौरन ही टॉर्च रोशन हो गई। बाबा कंबल नजदीक ही एक दरख्त के पीछे से निकला। उसने असरार के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी मारी और इंतहाई सख्त लहजे में बोला, डरता क्यों है? इधर आ जा। असरार कब्रों का ख्याल किए बिना तेजी से कब्रें फलांगता बाबा कंबल के पास पहुंच गया। इस तरह डरेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? बाबा कंबल के लहजे में सरजनिश थी। नहीं बाबा, डरा नहीं, बस आपको देख रहा था। असरार ने बात बनाने की कोशिश की। बाबा कंबल ने उससे मजीद कोई बात न की। वो खामोशी से एक पुख्ता कब्र पर बैठ गया। इस कब्र के साथ ही एक नीम का छोटा सा दरख्त था। असरार बाबा कंबल के साथ ही बरजमान हो गया। दिलगीर, ओ दिलगीर, अचानक बाबा कंबल ने ऊंची आवाज लगाई। किधर है तू? आ गया बाबा, आ गया। फौरन ही कुछ फासले से एक मौदबाना सी आवाज आई। चंद लम्हों में एक साया उनके नजदीक आ गया। बाबा कंबल ने फौरन टॉर्च बुझाई। असरार ने बाबा की तकलीद की। बाबा कैसे हो? वो शख्स सामने आकर खड़ा हो गया। अंधेरे में उसकी शक्ल वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रही थी। हाँ दिलगीर, क्या किया तूने? बाबा ने उसकी मिजाज पुरसी का कोई जवाब ना दिया और अपने मतलब की बात की। बाबा, हिंदू वाला तैयार है, उसने बड़ी फरमाबरदारी से कहा। चल फिर बता किधर है, वक्त जाया ना कर। बाबा कंबल खड़ा होता हुआ बोला। आ जाओ मेरे साथ, उस शख्स ने कहा। फिर बोला, ये अपनी अमानत ले लो। कब की है? बिल्कुल ताजा है। वाह, ये काम किया है तूने, दिल खुश कर दिया। बाबा कंबल खुश होकर बोला, ला दे, किधर है? तब उस शख्स ने कपड़े के काले थैले को बाबा की तरफ बढ़ाया। बाबा कंबल ने उस थैले को अपने इकलौते हाथ में लेकर उसे हिलाया जैसे वजन का अंदाजा करना चाहता हो। शाबाश दिलगीर, बाबा कंबल ने फिर उसकी तारीफ की। इसके बाद वो कपड़े का काला थैला बाबा कंबल ने असरार के हाथ में दे दिया और बोला, एहतियात से पकड़ो उसे। असरार ने इस थैले को हाथ में लिया तो वो उसे खासा वजनी महसूस हुआ। असरार बाबा कंबल के पीछे चल दिया। वो शख्स आगे था और तेजी से चल रहा था। बाबा कंबल ने टॉर्च रोशन कर ली थी। असरार उस टॉर्च की रोशनी में
बाबा कंबल के साथ साथ चल रहा था। अब उसे इस बात की फिक्र न थी कि उसका पांव जमीन पर पड़ रहा है या किसी की कब्र पर। 3-4 मिनट चलने के बाद वो शख्स नशीब की तरफ उतरा। तब सामने ही एक कब्र पर लालटेन रखी नजर आई। दिलगीर, जगह तो तूने अच्छी निकाली है, दूर से हमें कोई देख ना सकेगा। बाबा, तुम्हारा ख्याल करना ही पड़ता है। तू हमारा ख्याल करता है तो हम भी तेरा ख्याल करेंगे। घर आ जाना, तुझे मालो माल कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, 7 दिन बाद। 7 दिन में घर से बाहर हूँ। ठीक है बाबा, मैं आ जाऊंगा। अब तुम इंडोविला देख लो, कोई कमी हो तो बताओ, उस शख्स ने कहा। ये एक पुरानी टूटी हुई कब्र थी। उसका कुतबा गायब था। कुतबे की जगह लालटेन रखी हुई थी। बाबा कंबल ने कब्र में टॉर्च की रोशनी डालकर अंदर की हालत देखी। इस कब्र में ब्लॉक के जरिए 2 सीढ़ियां बना दी गई थी ताकि आदमी आराम से कब्र में उतर सके। कब्र अंदर से साफ थी। हिंडवाला ठीक है दिलगीर, मैं इसमें घंटे 1.5 घंटे तक आसन जमाऊंगा, फिर चला जाऊंगा। तू जरा ध्यान रखना इधर का। आप बेफिक्र होकर अपना आसन जमाओ, इधर कोई नहीं आएगा, वैसे मैं चक्कर मारता रहूंगा। बाबा कंबल को इत्मीनान दिलाकर वो शख्स जिसका नाम दिलगीर था चला गया। बाबा कंबल ने लालटेन उठाई और कब्र में उतर गया। लालटेन रखकर उसने कब्र से सर उभारा और बोला, लाओ असरार वो थैला। असरार ने करीब आकर वो काला थैला जिसमें कोई नरम सी चीज मौजूद थी बाबा के हाथ में थमा दिया। बाबा कंबल थैला हाथ में लेकर कब्र में बैठ गया और लालटेन करीब रखकर उसने काले थैले का मुंह खोला जो एक डोरी से बंधा था। असरार एक तरफ बैठा कब्र में झांक रहा था। बाबा कंबल ने डोरी एक तरफ फेंक कर थैले का मुंह खोला और थैले में छुपी चीज को निकाला। उस चीज को देखकर असरार की रूह फना हो गई। वो एक काले कुत्ते की गर्दन कटी लाश थी। बाबा कंबल ने उसे जमीन पर लेटा दिया और फिर अपने गले से चमड़े का स्या चमकता हुआ बैग उतारा। उसकी जिप खोलकर कुछ निकालने वाला था कि एकदम उसे ख्याल आया कि असरार ऊपर है। वो असरार, बाबा कंबल ने मुंह उठाकर उसे पुकारा। जी बाबा, वो सामने ही खड़ा था। फौरन बोला, ओ यार, क्या तू ऊपर ही रहेगा? बाबा कंबल ने पूछा। आप जैसा बोलो, असरार ने फरमाबरदारी से कहा। नीचे आ जा, अभी तमाशा शुरू हो जाएगा, कहीं तू चपेट में ना आ जाए। बाबा कंबल ने कहा। ठीक है बाबा, मैं नीचे आ जाता हूँ। ये कहकर वो एहतियात से सीढ़ियों पर कदम रखता नीचे उतर गया। कब्र में ज्यादा जगह ना थी। सारी जगह तो लंबे चौड़े बाबा कंबल ने घेर ली थी। कुत्ते की लाश भी जमीन पर पड़ी थी। असरार अपने लिए कोने में जगह बनाकर सुकेड़ समट कर बैठ गया। बाबा कंबल ने बैग से एक चमकती हुई छुरी निकाली। उस छुरी को लालटेन की मध्यम रोशनी में उलट पलट कर देखा। उसी वक्त एक कहिया आवाज आई, ये मेरा जानवर है। ये आवाज नजदीक से ही आई थी, लेकिन असरार ये तायुन ना कर सका कि आवाज किधर से आई। शायद ऊपर से, शायद कोने से, शायद असरार के पीछे से। फिर ये आवाज मुसलसल आना शुरू हो गई। ये मेरा जानवर है। ये आवाजें मिली जुली थी। कभी लगता कोई मर्द बोल रहा है, कभी लगता कोई औरत बोल रही है, कभी यूं महसूस होता कोई बच्चा बोल रहा है। इन आवाजों में करख्तगी और खबासत भरी हुई थी। ये आवाजें मुसलसल आ रही थी और एक दूसरे में गुड़बड़ हो रही थी। बस अचानक बाबा कंबल छुरी ऊपर उठाकर बोला, सुन लिया, मैं बहरा नहीं हूँ। बाबा कंबल की डांट भरी आवाज उभरते ही वो सारी आवाजें एकदम मादूम हो गईं। कब्र में सन्नाटा छा गया। सबको इसका हिस्सा मिलेगा। मैं बोटी बोटी करके तुम्हारे जानवर को यहाँ छोड़ जाऊंगा। अपना अपना हिस्सा उठा लेना, समझ में आ गया? बाबा कंबल ने छुरी की तरफ देखकर कहा। जवाब में कोई आवाज नहीं आई। गालिबन सबकी समझ में अच्छी तरह आ गया था। असरार इधर आ, इसे पकड़। बाबा कंबल ने गर्दन कटे कुत्ते की तरफ इशारा किया। इसके बाद बाबा कंबल ने किसी माहिर कसाई की तरह उसका सर अलग किया। बड़ी महारत से कुत्ते की खाल उतारी और बड़ी तेजी से उस लाश को बोटियों में तब्दील कर दिया। फिर उसने काले कुत्ते का दिल मुट्ठी में लेकर मुंह से नामानूस से अल्फाज निकाले और फिर दिल को जमीन पर रखकर इसमें छुरी की नोक पे वस कर दी। इस वक्त किसी औरत की चीख सुनाई दी, लेकिन ये चीख दिलदोज न थी, खुशी भरी थी। आसार एक लम्हे को सहम कर रह गया। उसने डरते डरते कब्र में चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नजर न आया। बाबा कंबल ने ऊपर गर्दन उठाई और बोला, केशवी तू आ गई? जब तू बुलाएगा तो आऊंगी नहीं क्या? पूछता है केशवी तू आ गई? उसकी आवाज में गुस्सा था। तू कड़वी की कड़वी रहेगी, कभी आराम से बात नहीं करेगी। बाबा कंबल ने जवाबन उसे झड़का। हो, तू कौन सा शहद भरा है? बोल क्यों बुलाया? उसकी आवाज फटे बांस जैसी थी। मुझे काकूर चाहिए। बाबा कंबल ने अपना मुद्दा बयान किया। तू 12 हाथ वाली से बोल, वही कुछ कर सकती है। 12 हाथ वाली का जाप करना होगा। बाबा कंबल के लहजे में कुछ परेशानी थी। तू मांगता भी तो काकूर है। बैठी बैठी सी आवाज आई। काकूर पर कब्जा कोई आसान तो नहीं। तूने देखा नहीं कि वो जरा देर में तेरा हाथ ले उड़ा? जानता हूँ कब्जा आसान नहीं, बाबा कंबल ने गुस्से से कहा, पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे मेरी जरा सी गलती ने नुकसान पहुंचाया। कोई बात नहीं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। काकूर को अपनी मुट्ठी में लेकर रहूंगा। उसने मेरा एक हाथ लिया है, मैं उसे पूरा पूरा ले लूंगा। फिर कर ले 12 हाथ वाली से बात, क्या पता वो तुझ पर मेहरबान हो जाए। हाँ करूंगा बात, जरूर करूंगा, बाबा कंबल ने पुरअज़म लहजे में कहा। फिर बोला, अच्छा ले तू अपना हिस्सा और जा अपने ठिकाने पर।
ये कहकर बाबा कम्बल ने छुरी की नोक में पेवस दिल को ऊपर उठाया। छुरी ऊपर उठाते ही दिल चश्मे-ए-ज़दन में गायब हो गया और इसी वक्त एक नुस्वानी चीख सुनाई दी। ये खुशी भरी चीख थी। उस चीख के बाद कब्र में फिर गहरा सन्नाटा छा गया। असरार को आवाज़ों के सिवा कोई चीज नजर नहीं आई थी। हो सकता है बाबा कम्बल को वो नजर आई हो। ये केशवी कौन थी वो नहीं जानता था, ना वो बाबा कम्बल से पूछने की जरूरत कर सकता था। ये काले इल्म की दुनिया थी और इस काली दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता रोशनास होता जा रहा था। बाबा कम्बल ने जमीन पर पड़े खून को अपनी 3 उंगलियों पर लगाया और उसे अपनी पेशानी पर 3 लकीरें बनाई। इसके बाद उसने छड़ी उठाकर जोर जोर से अजीब और गरीब अल्फाज अपने मुंह से निकाले और जोर से छुरी कुत्ते की आंख पर मारी। छुरी से आंख बाहर आ गई। यही अमल उसने दूसरी आंख पर भी दोहराया और आंख से छुरी निकालने के बजाय उसने छुरी से कुत्ते का सर उठा लिया और कुछ पड़ते हुए उसका सर अपने सर पर घुमाने लगा। असार बड़े गौर से इस घूमते हुए सर को देख रहा था। वो चक्कर भी गिन रहा था और इन अल्फाज पर भी गौर कर रहा था जो बाबा कम्बल की जुबान से अदा हो रहे थे। धम कुन वहम बन धम सुन, वाह देव वाह। 7 चक्कर पूरे होते ही बाबा कम्बल ने अपने हाथ को रोका। हाथ रोकते ही कुत्ते का सर अचानक गायब हो गया और कब्र में कुड़कुड़ की आवाजें गूंजने लगी जैसे कोई हड्डियां तोड़कर चबा रहा हो। बाबा कम्बल खाली छुरी पर नजर जमाए हुए ज़ेर लब बड़ी तेजी से कुछ पड़ रहा था। हड्डियां चबाए जाने की आवाज चंद लम्हे आई। इसके बाद फिर से खामोशी छा गई। कोई आधे घंटे तक बाबा कम्बल आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोलता रहा। असरार की कोशिश के बावजूद उसकी समझ में वो सारे अल्फाज ना आ सके। बीच बीच से कोई लफ्ज उसकी समाज से टकरा जाता तो वो इस लफ्ज को दोहराकर अपनी याददाश्त में महफूज कर लेता। काफी देर के बाद अचानक कब्र में एक कूंदा सा लपका जैसे एक लम्हे को बिजली चमकती हो। फिर कब्र में मुकम्मल अंधेरा छा गया क्योंकि लालटेन अचानक भड़क कर बुझ गई थी। गुप अंधेरा होते ही असरार नासिर के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसे जमीन दफन कर दिया हो। मरने के बाद कब्र में शायद इसी तरह अंधेरा होगा या इससे भी ज्यादा। मौत के तसव्वुर से ही उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। उसके हाथ में टॉर्च थी। अंधेरा होते ही उसका हाथ टॉर्च के बटन की तरफ आया। उसने सोचा कि फौरन टॉर्च रोशन कर दे इससे पहले कि असरार अपनी इस ख्वाहिश पर अमल करता। अचानक कब्र के अंधेरे में एक सांप की सी फंकार सुनाई दी। क्या करता है? बाबा कम्बल गुस्से और खौफ के मिले-जुले लहजे में चीखा। ये सुनते ही असरार के हाथ से टॉर्च छूट गई और ये सोचकर उसका दिल कांपने लगा कि अगर कहीं वो टॉर्च रोशन कर देता तो ना जाने बाबा कम्बल के अमल का क्या हशर होता। फिर बाबा कम्बल उसका जो हशर करता वो बड़ा काबिल दीद होता। जरा सी गलती उसे रांदा दरगार कर देती। कब्र में अंधेरा था, इतना कि उसे आंखें खुली रखना मुश्किल हो गया। वैसे आंखें खुली रखने का कोई फायदा भी ना था। कोशिश के बावजूद उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। बस वक्फे वक्फे से बाबा कम्बल की आवाज सुनाई दे रही थी। वो किसी से मुखातिब था, किससे मुखातिब था इसका पता नहीं चल रहा था क्योंकि किसी की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी, ना आवाज सुनाई दे रही थी। और ये सवालात भी कुछ इस अंदाज के थे कि असरार नासिर उनके मायने अखज़ ना कर सका। वो खालिसन तकनीकी जुबान थी। सवालात का ये सिलसिला 1-2 मिनट से ज्यादा ना चला। फिर से कब्र में खामोशी छा गई। अंधेरा पहले से ही मौजूद था। अचानक बिजली सी चमकी और लालटेन खुद ब खुद जल उठी। बाबा कम्बल के अंधेरे चेहरे पर दांतों की चमक नुमाया हो गई। फिर उसके मुंह से खुशी भरी आवाज निकली, हाँ भाई असरार, अब जला ले रोशनी, खूब चरागा कर। वैसे तू क्या करने लगा था? अगर मैं तुझे ना टोकता तो तूने टॉर्च जला देनी थी। रोशनी होते ही सब कुछ जल जाना था। ना तू रहता ना मैं रहता। बाबा मुझे अंदाजा नहीं था, वरना मैं ये हरकत कभी ना करता। वो खौफजदा लहजे में बोला, जानता हूँ इसमें तेरी कोई गलती नहीं, हमें तुझे पहले ही बता देना चाहिए था। बाबा कम्बल ने बड़े नरम लहजे में कहा, चल अब उठ निकल यहाँ से। ठीक है बाबा चले, असरार बोला। बाबा कम्बल ने अपनी छुरी उठाकर बैग में डाली और टॉर्च पकड़कर खड़ा हो गया। उसने अपनी टॉर्च रोशन कर ली और कब्र से बाहर निकलने के लिए एक सीढ़ी पर कदम रखा। फिर पलट कर बोला, असरार लालटेन उठा ला। असरार लालटेन उठाकर बाबा कम्बल के पीछे कब्र से निकल आया। क्या वजह है? बाबा कम्बल ने पूछा। असरार ने कलाई पर बंधी घड़ी पर टॉर्च की रोशनी डाली और बोला, बाबा 12:30 बजे हैं। चलो फिर उधर चलने का वक्त हो गया है। ये कहकर बाबा ने 2 कदम आगे बढ़ाए। फिर जैसे उसे कुछ ख्याल आ गया वो रुक गया और असरार से मुखातिब होकर बोला, जा जरा कब्र में तो झांक। असरार भी कब्र के नजदीक ही था। उसने टॉर्च बंद करके कब्र में झांका। उसे कुछ नजर ना आया। क्या नजर आया? बाबा कम्बल ने पूछा। कुछ नहीं, कब्र में अंधेरा है, असरार ने बताया। ओ यार टॉर्च तो जला, फिर ही तो कुछ नजर आएगा। असरार ने अपनी टॉर्च रोशन करके कब्र में देखा। उसे वहां एक हैरान कर देने वाला मंजर नजर आया। उन्हें कब्र से बरामद हुए बमुश्किल 2-3 मिनट हुए होंगे और इस असना में कोई कब्र के अंदर गया था और ना ही कोई बाहर निकला था। लेकिन कब्र बिल्कुल साफ थी। वहां गोश्त की बोटियां थी न खाल, हत्ता कि जमीन पर पड़ा खून भी बिल्कुल साफ हो चुका था। हाँ भाई क्या देखा? बाबा कम्बल ने पूछा। बाबा कब्र तो बिल्कुल साफ हो गई है। असरार हैरत ज़दा था। हाँ जिसका हिस्सा था वो ले उड़ा। बाबा कम्बल ने हंसकर कहा, चल अब आजा। बाबा कम्बल टॉर्च रोशन करके आगे बढ़ा।
اسرار ہاتھ میں لالٹین لیے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ ابھی وہ تھوڑا سا ہی آگے چلے ہوں گے کہ بابا کمبل کو کچھ فاصلے پر ایک سایہ کھڑا دکھائی دیا۔ تو دلگیر ہے کیا؟ بابا کمبل نے اونچی آواز میں پوچھا۔ ہاں بابا میں ہوں، ادھر سے جواب ملا۔ ارے تو بڑے ٹھیک وقت پر پہنچ گیا، بابا کمبل نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں بابا میں ادھر ہی بیٹھ گیا تھا۔ دلگیر نے آگے بڑھ کر اسرار سے لالٹین لے لی اور بابا کمبل سے مخاطب ہو کر بولا، بابا کام ہو گیا؟ ہاں اب میں 7ویں رات کو یہاں آؤں گا، میرا انتظار کرنا، بابا کمبل بولا۔ ٹھیک ہے بابا، دلگیر نے کہا۔ دلگیر یہ ہینڈولا مجھے پسند آیا ہے، تو ایسا کر اسے اندر سے کشادہ کر کے مضبوط دیواریں اٹھا دے اور سلیب رکھ کر کچی قبر تیار کر دے اور اس پر میرے نام کا قدبہ لگا دے، اور ہاں اندر 2-3 چھوٹی سیڑھیاں بھی بنوا دینا تاکہ ہمیں اترنے میں آسانی ہو۔ ہمیں جب بھی آنا ہوگا ایک طرف کی مٹی ہٹا کر سلیب اٹھائیں گے اور اندر اتر جائیں گے، بابا کمبل نے دلگیر کو تفصیل سے سمجھایا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں بابا بالکل ٹھیک ہے، دلگیر بولا، جو تم نے کہا ویسا ہی ہو جائے گا، پھر تو انعام بھی ویسا ہی پائے گا، بابا کمبل نے کہا۔ پھر وہ اسرار سے مخاطب ہو کر بولا، چل اسرار اپنا راستہ پکڑ۔ پھر یکدم خیال آیا، وہ چونک کر بولا، وہ ہاں یہاں آس پاس پانی ہے؟ ہاں بابا پانی بہت، کیا کرنا ہے؟ یار ذرا ہاتھ منہ دھونا ہے، یہاں سے کسی کے گھر جانا ہے، ہاتھ منہ پر خون لگا ہے، کسی کی نظر پڑے تو ڈر نہ جائے، بابا کمبل نے اپنے سفید دانت چپکائے۔ وہ اسرار تو نے بھی تو یاد نہیں دلایا، چل تو بھی ہاتھ منہ دھو لے۔ پھر انہوں نے دلگیر کے لائے ہوئے پانی سے اچھی طرح ہاتھ منہ دھوئے۔ بابا کمبل کے چہرے پر کوئی خاص فرق نہ پڑا، البتہ پیشانی سے خون ضرور صاف ہو گیا، پر منہ منحوس کا منحوس رہا۔ قبرستان سے نکل کر انہوں نے ایک ٹیکسی پکڑی اور سالم کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ کوئی آدھے گھنٹے میں وہ سالم کے گھر پہنچ گئے۔ گیٹ کی چابی اسرار کے پاس موجود تھی، اس نے چھوٹے گیٹ کا تالا کھولا، رات کے سناٹے میں کھٹ پٹ کی آواز پیدا ہوئی، وہ دونوں اندر آ گئے۔ اسرار نے پلٹ کر گیٹ بند کر دیا اور تالا لگا کر وہ گھر کی طرف بڑھ گئے۔ اوپر جانے کا دروازہ سامنے ہی تھا، یہ دروازہ اونچائی پر تھا۔ 3 سیڑھیاں چڑھ کر اسرار نے دروازہ کھولا اور کوشش کی دروازہ کھولنے کا شور نہ ہو، لیکن کیونکہ یہ دروازہ بہت کم کھلتا تھا لہذا زنگ آلود ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا شور ہوا، لیکن رات کے سناٹے میں شور بھی بہت تھا۔ آج منگل کی رات تھی۔ سارا اور سارم کو معلوم تھا کہ وہ دونوں آج سے اپنا عمل شروع کریں گے۔ سارا اور سارم ان کے منتظر تھے۔ جیب میں گیٹ پر کھٹ پٹ کی آواز آئی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ بابا کمبل اور اسرار آ پہنچے، اور جب زینے کا بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ دونوں ہی ہیں۔ پھر زینے کا دروازہ اندر سے بند ہونے کی آواز آئی اور وہ دونوں اوپر چڑھنے لگے اور دھم دھم کرتے اوپر پہنچ گئے۔ چاندنی کی آخری تاریخیں تھیں، رات تاریخ تھی، چاروں طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ٹھنڈی اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ اوپر کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر گہرا اندھیرا تھا۔ اسرار نے کمرے کی لائٹ جلائی اور بابا کمبل کا بیگ دیگر سامان اس نے بیڈ پر ڈال دیا۔ بابا کمبل نے سب سے پہلے وہ دروازہ بند کیا جس سے نیچے جایا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے چھت کے 7 چکر کاٹے اور پھر چھت کے درمیان کھڑے ہو کر اس نے دھیرے دھیرے کچھ بولنا شروع کیا۔ وہ قطن نامانوس الفاظ بول رہا تھا۔ اسرار کمرے کی دہلیز پر بیٹھ گیا اور بابا کمبل کو بغور دیکھنے لگا۔ 10-15 منٹ کے عمل کے بعد بابا نے اپنی جگہ سے حرکت کی، پوری چھت کا 4 دیواری کے ساتھ ایک چکر لگایا اور اسرار کو دروازے سے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ اسرار فوراً دروازہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ بابا کمبل اندر داخل ہوا اور اس نے کمرے کی کھڑکیوں کے 7 چکر لگائے اور پھر دروازے سے نکل کر چھت کے درمیان کھڑا ہو گیا اور وہی نامانوس الفاظ بولنے شروع کر دیے۔ 10-15 منٹ کی عمل جاری رہا۔ اس کے بعد پھر اس نے چھت کا چکر لگا کر کمرے کا بھی چکر کاٹا اور پھر چھت کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ اس طرح اس نے یہ عمل 3 بار دہرایا اور پھر کمرے کے اندر قالین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، کچھ دیر خاموش بیٹھا، اسرار کی طرف دیکھتا رہا۔ بابا کمبل کی آنکھوں میں اس قدر وحشت تھی کہ اسرار اس کی آنکھوں کی طرف چند لمحے بھی نہ دیکھ سکا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ تب بابا کمبل بولا، ہاں بھائی پھر شروع کرے گا ہم؟ جی بابا ضرور۔ اسرار آسن جما کر بابا کمبل کے سامنے بیٹھ گیا۔ یار اسرار، ہم نے یہاں 7 راتیں گزارنی ہیں، بس یوں سمجھ لے کہ 7 راتیں نہیں بلکہ 7 سنہری موقع ہیں۔ اگر ایک بھی موقع ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر سمجھ لے کہ مٹی کے سوا ہمیں یہاں سے کچھ نہ ملے گا۔ ہمارا جس مخلوق سے واسطہ پڑا ہے یہ بڑی طاقتور مخلوق ہے اور بڑی شاطر، آنکھوں میں دھول جھونکنے والی، لہذا بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ ڈرنے والی کوئی بات نہیں، میں بھی آخر 12 ہاتھ والی کا پجاری ہوں، اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں ہوں۔ اب تو اچھی طرح سمجھ لے کہ ان 7 راتوں میں تو نے یہاں کس طرح رہنا ہے، کیا کیا کرنا ہے۔ اس شرری مخلوق پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں بڑے پاپڑ بیلنا ہوں گے۔ بابا کمبل نے پھر اسے چند ضروری ہدایتیں دی، اسے سمجھایا کہ کس موقع پر کیا کرنا ہے۔ اسرار بابا کمبل کی باتیں بڑی توجہ سے سنتا اور سمجھتا رہا۔ یہ ہدایت سن کر اسرار کے ذہن میں جو سوالات اٹھے وہ اس نے بابا کمبل کے سامنے رکھے۔
بابا کمبل نے اس کے سوالات کا پوری تفصیل سے جواب دیا۔ بابا کمبل اس کے سوالات سن کر بڑا خوش ہوا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اسرار ایک ذہین شخص ہے، آگے جا کر وہ اس کے بھی کان کاٹے گا۔ اسرار کو اچھی طرح سمجھا کر بابا کمبل نے اپنا عمل شروع کیا۔ وہ قالین پر ایک خاص انداز سے آسن جما کر بیٹھ گیا اور اس نے آہستہ آہستہ کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اسرار اس کی ہدایت کے مطابق اسی انداز میں برابر بیٹھ گیا اور اس کا بتایا ہوا ایک نامانوس لفظ دہرانے لگا۔ اس طرح اس عمل کا آغاز ہو گیا جو 7 راتوں پر محیط تھا۔ یہ عمل سورج نکلنے تک جاری رہا۔ اسرار تو عمل کے آغاز کے بعد 2 گھنٹے تک اس کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر وہ بیڈ پر سو گیا۔ صبح کو جب عمل ختم ہوا تو بابا کمبل نے اسرار کو اٹھایا اور خود بیڈ پر لیٹ کر چند منٹوں بعد ہی خراٹے بھرنے لگا۔ اسرار منہ ہاتھ دھو کر گھر سے نکلا۔ اس نے بازار میں ایک ہوٹل سے حلوہ پوری کا ناشتہ کیا اور اس کے بعد اس نے اپنے اور بابا کے لیے دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا۔ بابا کمبل عمل کے دوران میں صرف دوپہر کا کھانا کھاتا اور وہ بھی مرغی کی کلیجی اور لیمو کا پانی۔ کھانے وغیرہ کا انتظام کر کے وہ 10 بجے گھر واپس آ گیا۔ وہ گھر کا چھوٹا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اسے گھر کے دروازے سے سارم نکلتا نظر آیا۔ اسرار سارم کو دیکھ کر رک گیا۔ ہاں بھائی اسرار، خیریت ہے سب؟ سارم نے اس کے قریب پہنچ کر پوچھا۔ جی سارم بھائی، اسرار نے مسکرا کر جواب دیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ سارم نے پوچھا۔ بابا جی کا کھانا لے کر آ رہا ہوں، اسرار نے بتایا۔ لیکن تم نے تو بتایا تھا کہ بابا صاحب عمل کے دوران کھانا بالکل نہیں کھاتے۔ سارم کو یاد آیا۔ سارم بھائی بس دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی خاص قسم کا۔ آپ کو اس لیے منع کر دیا تھا کہ بابا جی نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو کھانے کے مسئلے پر پریشان کیا جائے، اسرار نے وضاحت کی۔ اچھا یار، جیسی تمہاری مرضی، سارم نے اسرار کے ہاتھ میں لٹکے ہوئے شاپر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ برتن وغیرہ کی ضرورت ہو تو خالہ سجو سے لے لینا، اوپر ہیں، ضرورت کے مطابق برتن بھابھی نے پہلے ہی رکھوا دیے تھے، آپ فکر نہ کریں، کوئی مسئلہ ہوگا تو میں بھابھی کو بتا دوں گا، اسرار نے خوش دلی سے کہا۔ رات تو ٹھیک گزری؟ ہاں، ہم لوگ رات کو قبرستان سے سیدھے ادھر آ گئے تھے، وہاں ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں بابا جی نے وظیفہ کیا تھا۔ اسرار نے سارم پر اثر ڈالنے کے لیے قبرستان اور بطور خاص ٹوٹی خبر کا ذکر کیا۔ اسرار تمہیں ڈر نہیں لگا؟ ڈر کس بات کا سارم بھائی؟ اگر ڈریں گے تو کام کس طرح کریں گے؟ ہمارا تو واسطہ ہی دن رات پراسرار مخلوق سے ہے، اسرار نے بڑے فخر سے کہا۔ اسرار ذرا محتاط انداز میں کام کرنا، بابا صاحب اپنا ہاتھ کٹوا بیٹھے ہیں، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، سارم نے فکر مند لہجے میں کہا۔ ارے سارم بھائی آپ فکر ہی نہ کریں، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، اب یہ مخلوق خود تباہ و برباد ہوگی، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ بابا جی نے بڑے زبردست عمل کا آغاز کیا ہے، اسے یہ گھر چھوڑنا ہی ہوگا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، سارم نے پر امید لہجے میں کہا۔ پھر وہ اسرار سے رخصت ہو کر مین گیٹ کی طرف بڑھا اور اسرار زینے کے دروازے کی طرف۔ اسرار زینے کا دروازہ کھول کر اوپر پہنچا تو بابا کمبل کو بیڈ پر سویا پایا۔ وہ کچھ اس انداز سے سو رہا تھا کہ اسرار اسے دیکھ کر ایک لمحے کو ڈر گیا۔ بابا کمبل کالے رنگ کا تہمت باندھی اور قمیض اتارے اس طرح بے سود پڑا تھا کہ ڈبل بیڈ ہونے کے باوجود بیڈ چھوٹا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کسی دیو کی طرح ہاتھ پاؤں پھیلائے، منہ پھاڑے، کٹا ہوا ہاتھ سینے پر رکھے کچھ اس بھیانک انداز سے سو رہا تھا کہ اچھا بھلا آدمی اسے دیکھے تو خوف سے چیخ مار کر پیچھے ہٹ جائے۔ اسرار پر بھی ایک لمحے کو خوف طاری ہوا، لیکن پھر اس نے فوراً ہی اپنے خوف پر قابو پا لیا۔ 11 بجے کے قریب اسرار نے بابا کمبل کا کھانا اسے پیش کیا۔ آدھا کلو کلیجی ایک روٹی کے ساتھ کھا کر ایک جگہ لیمو کا پانی پیا تو اس کی زرد آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ 12 بجے وہ کمرے سے نکلا، سورج کی طرف منہ کر کے جلتے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے جسم پر تہمت کے سوا کچھ نہ تھا، سخت گرمی پڑ رہی تھی، سورج کی تمازت سے جسم جھلسے جاتے تھے، جبکہ بابا کمبل پورے اطمینان سے قمیض اتارے ننگے بدن دھوپ میں بیٹھ کر کوئی جاپ کر رہا تھا۔ اس کے کالے جسم پر پسینہ پھوٹ بہا تھا، پیشانی عرق آلود تھی، لیکن وہ بڑے آرام سے کچھ پڑے جا رہا تھا۔ اس کی گردن پینڈولم کی طرح ہل رہی تھی، لمبے لمبے بال گردن کے ساتھ ادھر ادھر لہرا رہے تھے، اس کی آنکھیں بند تھی۔ کوئی 2 گھنٹے تک اس نے دھوپ میں بیٹھ کر یہ عمل کیا، پھر وہاں سے سیدھا اٹھ کر واش روم میں داخل ہو گیا۔ پورے 1 گھنٹے تک وہ واش روم میں رہا، شاید پورا شاور کھول کر وہ اس کے نیچے بیٹھا رہا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کا کالا جسم مزید کالا ہو چکا تھا۔ اس نے اسرار سے کہا، میں اب سوتا ہوں، مجھے 6 بجے کے قریب اٹھا دینا۔ ٹھیک ہے بابا جی، اسرار نے بڑی فرمانبرداری سے کہا۔ اس طرح بابا کمبل کے رات اور دن گزرنے لگے۔ 6 راتیں بڑے سکون سے گزر گئیں۔ لگتا ہی نہ تھا کہ اس گھر میں کسی شرری مخلوق کا بسیرا ہے، ایسی شرری مخلوق جو کئی انسانوں کی جان لے چکی ہے اور اس گھر میں بسنے والوں کا ایسا ناک میں دم کیا ہے کہ توبہ بھری۔ 6 راتوں سے اس گھر میں سکون تھا۔ بابا کمبل کا عمل اختتام پر تھا۔ وہ اپنے اس عمل سے بہت مطمئن اور بہت خوش تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ جب یہاں سے جائے گا تو اس کے ہاتھ میں بڑی طاقت ہوگی، اس طاقت کے ذریعے وہ جو چاہے گا کرے گا۔ لیکن یہ مسئلہ ہے کہ بندہ جو چاہے اگر وہ ہونے لگے تو پھر اوپر والے کو کون پوچھے۔ خوش فہمی میں مبتلا بابا کمبل کا عمل 7ویں رات میں داخل ہوا۔ وہ شرری مخلوق جو ابھی تک خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، وہ اچانک ایکشن میں آئی اور تب احساس ہوا کہ وہ مخلوق شرری ہونے کے ساتھ ساتھ شریر بھی ہے اور عیار بھی۔ 7ویں رات 1 بجے کا عمل۔ چھت کے بیچ بیٹھا بابا کمبل
उसके आगे पानी से भरी बाल्टी और हाथ में तेज धार की छुरी। बेडरूम की चौखट पर बैठा असरार मलकजी अंधेरे में आंखें फाड़े बाबा कंबल पर नजरें जमाए। छत पर अंधेरा था, लेकिन स्ट्रीट लाइट और आसपास घरों में जलती रोशनियों का मध्यम उजाला छत पर फैला हुआ था। बाबा कंबल अपने अमल में मसरूफ था। वो 2-3 मिनट कुछ नामानूस अल्फाज दोहराता। इसके बाद उसका हाथ जिसमें तेज धार की चमकती छुरी थी फजा में बुलंद होता और वो इस छुरी को पानी भरी बाल्टी में कुछ इस अंदाज से मारता जैसे छुरी किसी के बदन में घुसेड़ रहा हो। ये अमल 12 बजे शुरू हुआ था। इसको चलते हुए अभी 1 घंटा हुआ था कि बाबा कंबल के पानी में छुरी मारते ही अचानक एक हिवला दीवार से छत पर कूदा। वो जो भी था काले कपड़ों में मलबूस था। लंबा चौड़ा छत पर कूदते ही वो सीधा खड़ा हुआ। उसका चेहरा काली चादर में छुपा हुआ था। बाबा कंबल ने उस हिवले को देखा तो उसके अंदर एक खौफ की लहर उभरी। जो कुछ भी सामने आया था वो कतई गैर मुतवक्का था। असरार नासिर को इस हिवले को देखते ही सिट्टी गुम हो गई। वो हाथों के बल बड़ी तेजी से पीछे खिसका ताकि जरूरत पड़े तो वो कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर ले। पीछे खिसक कर उसने इस हिवले पर नजर जमा दी। वो काला साया जहाँ कूदा था वहाँ इस्तदा हो गया था। ओ अकमल, तू यहाँ क्या कर रहा है? इस हिवले से आवाज आई। उस आवाज को सुनकर बाबा कंबल चौंक गया। ये तो उसके बाप की आवाज थी, उस बाप की जिसे उसने कत्ल कर दिया था। अब्बा तुम? बाबा कंबल ने हैरतज़दा होकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तूने मेरे साथ जो किया वो अपनी जगह, लेकिन मैं तेरा बाप हूँ। तुझे मैं किसी मुश्किल में मुब्तला होते नहीं देख सकता। बाबा कंबल का बाप बोला। अब्बा कैसी मुश्किल? तुम जानते हो कि मैंने बारात वाली का जाप किया है, उसके आखिरी मरहले में हूँ। बस चंद घंटों की बात है, फिर सब कुछ मेरा हो जाएगा। ऐसी ताकत मेरे हाथ आ जाएगी, ऐसा खजाना मेरे हाथ लग जाएगा, इसकी आरज़ू करता तू इस दुनिया से उठ गया। बाबा कंबल अपने नशे में था। उठ गया? मुझे तो तूने उठा दिया, अब्बा ने शिकवा किया। अब्बा, अगर मैं तुम्हें ना उठाता तो मैं तुम्हारे हाथों उठ जाता। बाबा कंबल बोला। ये क्यों बोलते हो? मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मैं जानता हूँ कि तू एक नाफरमान बेटा है। आज तू जिस मुकाम पर है वो मेरा ही अता करदा है। ना अब्बा, ये झूठ है। मैंने तुमसे काला इल्म जरूर सीखा, लेकिन तुमने मुझे कोई मुकाम ना दिया। ये मुकाम मैंने खुद अपने हाथों बनाया है। तुम तो मुझे भेंट चढ़ाना चाहते थे। तू क्या समझता है मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? मैं अब भी तेरी भेंट लेने आया हूँ। मैं भेड़ों का पुजारी हूँ। तू मरेगा तो मैं तेरे अंदर आऊंगा। अब्बा, तुम मुझे नादान मत समझो। मैंने कल भी तुम्हें कामयाब नहीं होने दिया था, आज भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम्हें किसी का जिस्म चाहिए तो इसके लिए कब्रिस्तान का रुख करो या शमशान घाट का। अकमल अभी मरा नहीं, और अगर मरा भी तो अपना जिस्म जलाकर मरेगा। इसके जिस्म पर कोई काबिज ना हो सकेगा। बाबा कंबल ने बड़े गुरूर भरे लहजे में कहा। जाओ अब्बा, अब तुम जाओ, मेरा अमल खोटा ना करो। तू अपना जिस्म जलाकर मरेगा? मैं खुद तुझे जलाकर मारे देता हूँ। तू अपना रहेगा ना किसी और का। वो काला साया 2 कदम आगे बढ़ा। उसके 2 कदम बड़े जारहाना थे। असरार नासिर उन दोनों की गुफ्तगू बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। बाबा कंबल के बारे में ये बड़ा हौलनाक इंकशाफ था कि वो अपने बाप का कातिल था, और अब बाबा कंबल के बाप की रूह अपना इंतकाम लेने आ पहुंची थी। इस मनूस रूह ने भी आज ही का वक्त मुंतखब किया था जब बाबा कंबल का अमल पाए तकमील को पहुंचने वाला था, और जिसके नतीजे में वो बेपनाह कुव्वत का मालिक बनने वाला था। बाबा कंबल की ताकत के खजाने से उसे कुछ न कुछ हासिल हो जाता, लेकिन उसका अब्बा तो सारा खेल बिगाड़ने आ पहुंचा। असरार की बस की बात होती तो वो इस काले साए को उठाकर दीवार के उस पार फेंक देता। उसी वक्त असरार ने देखा कि उस काले साए ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, एक शोला सा लपका और वो शोला बाबा कंबल के ऊपर आ गिरा। बाबा कंबल के जिस्म में यखलख्त आग लग गई। आग भड़कते ही उस काले साए ने एक भयानक कहका लगाया और एक जश्न में कद आदम दीवार पर चढ़ा और बाहर की तरफ कूद गया। बाबा कंबल के जिस्म में आग लगती देखकर वो अपनी जगह किसी स्प्रिंग की तरह उछला। बाबा कंबल के करीब पहुंचते ही उसने साए को दीवार से इस तरफ कूदते देखा। ये भी अच्छा था कि वो आग लगाकर गायब हो गया था। अब असरार के लिए आग बुझाना कोई मुश्किल न था। असरार ने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पानी से भरी बाल्टी उठाई और पूरी की पूरी बाबा पर उलट दी। पानी पड़ते ही बाबा कंबल ने एक भयानक चीख मारी। ओ कमबख्त, तूने ये क्या किया? बाबा कंबल की चीख और स्टांट भरे जुमले ने असरार को हिला दिया। उसे यकदम एहसास हुआ कि उसके हाथों खेल उलट गया है, उससे कोई भयानक गलती हो गई है। बाबा कंबल के जिस्म पर पानी पड़ते ही चंद लम्हों में उसके बदन पर बड़े बड़े आंवले उभर आए। बाल्टी में मसान मिला पानी था जो अमल की वजह से बेपनाह गर्म हो गया था, नुक्ता उबाल से भी 10 दर्जे ऊपर। बाबा कंबल के जिस्म पर जैसे ही पानी पड़ा वैसे ही गिद्धों के परों की फड़फड़ाहट और उनकी करियाई चीखें सुनाई देने लगी। यूं लग रहा था जैसे बेशुमार गिद्ध सर ऊपर उड़ रहे हों, लेकिन उड़ते हुए नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी खुशी भरी चीखें फजा में गूंज रही थी।
बाबा मैंने तो आपके जिस्म की आग, असरार नासिर डरते डरते बोला। अरे तूने आग बुझाने के बजाय हमारे जिस्म में आग लगा दी। हाय असरार, तूने मेरी 7 रातों की मेहनत बर्बाद कर दी। मैं जीतता जीतता हार गया। बाबा कम्बल के लहजे में बेइंतहा अफसरदगी थी, जैसे उसके हाथ में कोई कीमती शय आते आते निकल गई हो। बाबा मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपके जिस्म में आग लगते देखकर बेकरार हो गया था। बाबा मैं आपको जलता हुआ नहीं देख सकता था। असरार ने ताज्जुब से हाथ मलते हुए कहा। चल असरार, अब यहाँ से निकल, सामान समेट और घर चल। मेरे जिस्म में इस वक्त जो आग लगी है, इसकी तेजी का तू अंदाजा नहीं कर सकता। बाबा कम्बल ने बड़े कर्ब से कहा। अच्छा बाबा। असरार ने जितनी जल्दी मुमकिन हो सका अपना सामान बांधा और बाबा कम्बल की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, आओ बाबा चलें। बाबा कम्बल उसके हाथ के सहारे बमुश्किल उठकर खड़ा हुआ। असरार नासिर ने बेड पर पड़ी हुई स्काई ब्लू चादर से बाबा कम्बल का जिस्म ढांक दिया और फिर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरकर मेन गेट से बाहर आ गए। इसी वक्त एक टैक्सी सामने वाले घर के पास रुकी। इसमें एक फैमिली उतरकर घर में चली गई। असरार नासिर ने उसी टैक्सी को पकड़ लिया। बाबा कम्बल पिछली सीट पर नींद दराज हो गया, जबकि असरार नासिर अगली सीट पर बैठ गया। टैक्सी ड्राइवर ने पीछे मुड़कर एक नजर पीछे लेटे एक लंबे चौड़े शख्स को देखा। उसका चेहरा भी चादर से ढका हुआ था। ड्राइवर की समझ में ना आया कि किस किस्म की सवारी है। एक खौफ की लहर उसने अपने बदन में महसूस की और बराबर बैठे असरार नासिर से पूछा, कहाँ जाना है साहब? ओ मुसीबत, यहाँ से तो गाड़ी निकाल, बताते हैं तुझे कहाँ जाना है। एक गुर्राहट भरी करख्त आवाज पीछे से आई। इस आवाज को सुनकर ड्राइवर के रहे सही औसान भी खता हो गए। उसने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। असरार आगे बैठा उसे रास्ता बताता रहा, यहाँ तक कि वो अपने घर पहुंच गए। असरार ने बिजली की सी तेजी से उतरकर टैक्सी का पिछला दरवाजा खोला और बाबा कम्बल का हाथ पकड़कर टैक्सी से उतारा। फिर जल्दी से घर के दरवाजे पर पड़ा हुआ ताला खोला। बाबा कम्बल घर में दाखिल हुआ। चादर में लिपटे एक लंबे चौड़े आदमी को घर में जाते देखकर ड्राइवर की सिट्टी गुम हो गई। 1 मिनट रुको, मैं अभी आकर पैसे देता हूँ, असरार ने कहा। उन दोनों के अंदर जाते ही ड्राइवर ने बड़ी तेजी से गाड़ी बैक की और अगली गली से टन करके ये जा वो जा। असरार नासिर जब बाबा कम्बल को अंदर कमरे में लिटाकर बाहर वापस आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि टैक्सी वाला पैसे लिए बगैर जा चुका था। उसकी समझ में ये बात ना आई कि टैक्सी वाला बगैर पैसे लिए क्यों चला गया। असरार नासिर घर का दरवाजा बंद करके अंदर कमरे में आया। बाबा कम्बल पर अब नींद गशी सी तारी हो गई। उसने अब तक मिसाली जब्त का मुजाहरा किया था। इस जब्ती का नतीजा था कि वो अब होश आवाज से बेगाना होता जा रहा था। उसके जिस्म पर पड़े आबले फूटते जा रहे थे। आबले फटते ही उस जगह से खून रसने लगता। 10-15 मिनट के अंदर उसके जिस्म पर पड़े सारे आबले फट गए और जख्मों से खून बहने लगा। बाबा कम्बल की आंखें बंद होती जा रही थी। वो बड़े जब्त से काम ले रहा था, फिर भी उसके मुंह से एक दर्दनाक कराह निकल जाती थी। असरार बाहर सैन में तार पर पड़ा तौलिया उठा लाया था। वो आहिस्ता आहिस्ता बाबा कम्बल के जख्मों पर इस तौलिए को रख रहा था। वो एक जख्म का खून साफ करता तो दूसरे से खून बहने लगता। तौलिया खून से सुर्ख होता जा रहा था, लेकिन खून था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बाबा बाबा, असरार नासिर ने बाबा को पुकारा। हाँ क्या? बाबा कम्बल ने बामुश्किल आंखें खोली। बाबा खून नहीं रुक रहा। बेवकूफ, मसान लगा, बाबा कम्बल ने आग भरे लहजे में कहा। बाबा की बात सुनकर असरार को होश आया। वो फौरन दूसरे कमरे से एक शीशी की चौड़ी बोतल उठा लाया। उसमें ऊपर तक मसान यानी जले हुए मुर्दे की राख भरी हुई थी। ये खास मसान थी। इसमें बाबा कम्बल ने कई और चीजें की राख मिलाकर उसे 2 आतिशा बल्कि 6 आतिशा बना दिया था। असरार नासिर ने जल्दी से शीशी खोलकर अपनी हथेली पर कुछ राख निकाली और चुटकी में भर कर एक जख्म पर फैला दी। राख लगते ही बाबा किसी जिबा होते बैल की तरह डकारा। हाय मर गया। असरार जानता था कि राख उस टिंचर से 100 गुना ज्यादा लगी होगी जिससे जख्म धोया जाता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये तकलीफ महज एक दफा होगी। इसके बाद जख्म में ना सिर्फ ठंडक पड़ जाएगी बल्कि आनन फानन खून भी बंद हो जाएगा। लेकिन मसला ये था कि बाबा के जिस्म पर कोई एक जख्म तो ना था, वहां तो जख्म ही जख्म थे और हर जख्म पर राख लगाने का मतलब था एक और चीख। सवाल ये था कि क्या बाबा कम्बल इतने बेशुमार जख्मों पर इस राख को बर्दाश्त कर सकेगा। 2-3 जख्मों पर राख भरने के बाद असरार ने बेहाल बाबा कम्बल से पूछा, बाबा क्या करूं? मसान लगाता रहे, मेरी चीखों की परवाह ना कर, बाबा कम्बल ने नकाहत भरे लहजे में कहा। तब असरार नासिर जल्दी जल्दी जख्मों पर नमक छिड़कने लगा। ये राख किसी नमक से कम न थी। वो जख्मों पर राख लगाता रहा और बाबा चीखता रहा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि बाबा कम्बल चीखते चीखते होश गंवा बैठा, बेहोश हो गया। अब असरार के लिए राख लगाना आसान हो गया। वो पूरे इत्मीनान के साथ खून बहते जख्मों पर राख डालने लगा। उसने देखा कि जहां जहां उसने जख्मों पर राख लगाई थी वहां से खून बहना बंद हो गया था। तमाम जख्मों पर राख लगाने के बाद उसने एक बार और जहां जहां कम राख लगी थी मजीद राख लगा दी ताकि जख्म जल्दी ठीक हो जाएं। राख लगाने के बाद असरार नासिर ने बाबा कम्बल के जिस्म को तकरीबन नंगा कर दिया और पंखा पूरी स्पीड से खोल दिया। इसके बाद उसने कमरे की लाइट बुझाई और बाहर सहन में आ गया। उसने दीवार के साथ खड़ी चारपाई को उठाकर बीच सहन में डाला और फिर स्टोर से अपना बिस्तर निकालकर उस पर बिछाया और बिस्तर पर लेट गया।
वो बाबा कंबल की तरफ से बेफिक्र हो गया था। वो जानता था कि अब सुबह से पहले वो हरगिज होश में ना आएगा। वैसे ये जो कुछ हुआ था बड़ा गैर मुतवक्का हुआ था। सब कुछ ठीक जा रहा था। बाबा कंबल अपने अमल से बड़ा खुश था। साथ ही रात को अमल शुरू करने से पहले बाबा कंबल ने कहा था कि असरार बस अब तो ताबूत की आखिरी कील रह गई है, सुबह तक वो कील मेरे हाथ में आ जाएगी। वो कील ठोंक कर हम पूरा ताबूत यहाँ से ले उड़ेंगे। तू फिक्र न कर, तुझे भी इसमें हिस्सा मिलेगा। बाबा कंबल बड़ा खुश था, लेकिन उसका सारा जोश धरा का धरा रह गया। वो आखिरी कील हाथ आई जरूर, लेकिन शरी मखलूक के हाथ में। उसने बाबा कंबल की अमल की ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। ये सब कुछ हुआ था। असरार इस मामले को साफ तौर पर समझ नहीं पाया था। अगर उसे अंदाजा हो जाता कि वो जो देख रहा है महज फरेब नजर है तो पानी की भरी बाल्टी हरगिज बाबा के सर पर ना डालता। लेकिन शरी मखलूक ने खेल इस तरह खेला था कि कुछ समझने की गुंजाइश ही ना थी। जो कुछ करना था आनन फानन करना था। इस तरह वो शरी मखलूक के हाथ का खिलौना बन गया, चाबी भरा खिलौना। उसे बाबा कंबल की अमल की बर्बादी का बड़ा दुख था। साथ ही वो खौफजदा भी था कि बाबा कंबल अब उसके साथ जाने क्या शुरू करे। हो सकता है वो उसे घर से निकल जाने का हुक्म दे दे। असरार नासिर करवट पर करवट बदलता जा रहा था और सोचता जा रहा था। उसकी आंखों से नींद को दूर थी। एक हैरत अंगेज इंकशाफ ये हुआ था कि बाबा कंबल अपने बाप का कातिल था। ये बाबा की जिंदगी का इंतहाई खुफिया राज था जो इत्तफाकन उसके सामने खुल गया था। सवाल ये था कि बाबा कंबल ने आखिर अपने बाप को कत्ल क्यों किया। अभी वो इस सवाल का जवाब खोजता, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। तारीख रात इस वक्त अपने आखिरी पहर में थी। कोई 3 बजे का अमल होगा। हर सू गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। इस गहरे सन्नाटे में ये दस्तक दूर तक गूंज गई थी। कौन? असरार नासिर बिस्तर से उठता हुआ बोला। ओ असरार, दरवाजा खोल। दरवाजे की तरफ से आवाज आई। आवाज इंतहाई करख्त और फटे बांस जैसी थी। इस आवाज को पहचान कर असरार नासिर की रीढ़ की हड्डी में सर्दी की लहर उठी। उसने बंद दरवाजे को खौफ भरी नजरों से देखा। आप कौन हैं? असरार ने आवाज पहचान तो ली थी, फिर भी तस्दीक जरूरी थी। कौन के बच्चे, फौरन दरवाजा खोल, मैं तेरा बाबा का बाप हूँ, इधर से बेहद गुस्से में कहा गया। अब किसी शुबे की गुंजाइश नहीं रही थी। ये मालूम हो गया था कि दरवाजे के उस पार बाबा कंबल का बाप मौजूद है। मकतूल बाप जिसने चंद घंटों पहले अपने कातिल बेटे को इंतकाम का निशाना बनाया था। सवाल ये था कि दरवाजा खोले कि नहीं। पता नहीं अब वो यहाँ क्या करने आया था। कहीं फिर उससे कोई गलती ना हो जाए। उसे बाबा कंबल से पूछ लेना चाहिए, लेकिन पूछे कैसे? बाबा कंबल तो अंदर गाफिल पड़ा है। कुछ भी हो, उसे किसी तरह होश में लाकर दरवाजा खोलने की इजाजत लेना होगी। अब वो किसी तरह का खतरा नहीं मोल ले सकता था। असरार ने हतमी फैसला किया। अच्छा जनाब, 1 मिनट ठहरें, मैं दरवाजा खोलता हूँ। वो फौरन वापस पलटा। बाबा कंबल के कमरे में दाखिल हुआ। लाइट जलाकर बाबा कंबल के चेहरे को गौर से देखा। वो बिल्कुल सुध पड़ा था, लेकिन जैसे ही असरार उसके चेहरे पर झुका, पट से उसकी जर्द आंखें खुल गईं। क्या है? बाबा कंबल ने उसके चेहरे पर परेशानी देखकर पूछा। बाबा जी, दरवाजे पर आपके अब्बा खड़े हैं, असरार ने बताया। अब्बा का जिक्र सुनकर बाबा कंबल को करंट सा लगा। वो अपनी तकलीफ भूल भाल कर पूरी तरह होश में आ गया। वो असरार, तूने दरवाजा तो नहीं खोला? वो उठकर बैठता हुआ बोला। नहीं बाबा जी, आपसे पूछे बगैर भला दरवाजा कैसे खोल देता? शाबाश, तूने बहुत अच्छा किया। जा अब्बा को बोल दे दरवाजा नहीं खुलेगा, अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। बाबा कंबल ने उसे हिदायत की। ठीक है बाबा, असरार ने गर्दन झुकाकर कहा और कमरे से बाहर आ गया और सहन के दरवाजे के करीब आकर बोला। बाबा जी कह रहे हैं दरवाजा नहीं खुलेगा, अब उनका और आपका कोई रिश्ता नहीं। असरार का ख्याल था कि ये भारी जवाब सुनकर अब्बा शदीद गुस्से में आ जाएंगे। जवाब में वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करेंगे या फिर दीवार फलांग कर अंदर आ जाएंगे और पूछेंगे किधर है वो कमीना। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कुछ ना हुआ। ना दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई और ना दीवार फलांगने की कोशिश हुई। हत्ता कि कोई जवाब भी नहीं आया, जबकि जवाबी कार्रवाई के तौर पर अपने बेटे को 2-4 गालियां पूरे इत्मीनान के साथ दी जा सकती थी। असरार कुछ देर दरवाजे के पास खड़ा रहा। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। किसी किस्म की कोई आहट न थी। असरार ने किवाड़ की झर्री में से झांका। दरवाजे पर अब कोई न था। वो असरार, आजा, अब्बा जा चुके। अंदर से बाबा कंबल की आवाज आई। आ रहा हूँ बाबा जी। असरार गौर से चारों तरफ देखता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। मेरे कमरे की लाइट बंद कर और जाकर सो जा, बाबा कंबल ने उसे हिदायत की। और हाँ, मेरे जिस्म पर चादर डाल दे, अब काफी आराम है। अच्छा, मैं लाता हूँ चादर। असरार दूसरे कमरे से अलमारी से काली चादर निकाल लाया और बाबा के जिस्म पर डाल दी। चेहरा खुला रहने दिया। अब चादर और बाबा कंबल एक हो गए थे। असरार लाइट बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गया। वो बड़ा खुश था कि एक गलती से बच गया। उसने दरवाजा ना खोलकर इंतहाई अक्लमंदी का सबूत दिया था। बाबा की नजरों में उसकी थोड़ी बहुत वक़्त बहाल हो गई थी। इस एहसास ने उसे जल्द ही नींद की आगोश में पहुंचा दिया। ये 7वीं रात की सुबह थी। हस्बे मामूल खाला सज्जो सबसे पहले उठी। उसने अपना बिस्तर उठाकर जगह पर पहुंचाया और मुंह हाथ धोकर किचन में चली गई। कुछ देर बाद सारा भी अपने कमरे से निकल कर आ गई। उसने मुस्कुराकर खाला सज्जो को सलाम किया। खाला सज्जो ने हस्बे मामूल सारा को दुआएं दी।
पहले इन दुआओं में एक दुआ साहिब औलाद होने की होती थी। अब जबकि अल्लाह ने औलाद से नवाज दिया था तो ये दुआ थी कि बेटा दे और चांद सा दे। खाला सज्जो की इस तमन्ना को वो बड़े शौक से सुना करती थी, लेकिन उसके दिल में कोई तमन्ना ना थी। उसकी दुआ थी कि जो भी हो अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। साला सज्जो, पता नहीं ये लोग ऊपर हैं कि चले गए। आज तो आखिरी रात थी। सारा ने अपने बाल समेटते हुए कहा, देख कर आऊं? खाला सज्जो फौरन बोली, तुम कैसे देखोगी, ऊपर जाना तो मना है। सारा ने याद दिलाया, आए मैं ऊपर थोड़ी जाऊंगी, बाहर से देख कर आती हूँ, शायद असरार साहब नजर आ जाए। ठीक है जाओ, बाहर का चक्कर लगा कर आओ, सारा ने कहा। खाला सज्जो लॉन्च का बैरूनी दरवाजा खोलकर बाहर आई और घूमकर मेन गेट की तरफ पहुंची तो उसे मेन गेट का छोटा गेट चौपट खुला नजर आया। वो तेज कदमों से आगे बढ़ी। उसने जीने के दरवाजे पर नजर डाली, वो भी पूरा खुला हुआ था। उसने सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की कुछ सुनगुन ली, लेकिन कोई सरगर्मी महसूस ना हुई। ऊपर वो जा नहीं सकती थी। उसने जीने का दरवाजा बंद किया और फिर छोटा गेट बंद करके तेजी से घर में आई। सारा उसकी मुंतजिर थी। खाला सज्जो की शक्ल देखकर समझ गई कि कोई गड़बड़ है। क्या हुआ? उसने पूछा। सारा बीबी, जीने और बाहर का छोटा दरवाजा चौपट खुले थे, बंद करके आई हूँ। इसका मतलब है कि वो दोनों चले गए? हाँ बीबी, ऐसा ही लगता है। वैसे ऊपर रात को खासा हंगामा रहा है, उठा पटक की आवाजें आती रहीं। एक बार तो मैंने चीख की आवाज भी सुनी। सच बीबी, मैं तो डर गई थी। पता नहीं कौन चीखा था। भाई मुझे तो कुछ नहीं मालूम, मैं तो बड़े मजे से सोती रही। सारा ने हंसकर कहा, वैसे लगता है कि बाबा कम्बल का 7 रातों वाला वजीफा मुकम्मल हो गया। बीबी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। खाला सज्जू ने पुरुमीद लहजे में कहा, अब ये कैसे पता चलेगा? पता तो चल जाएगा। अगर वजीफा मुकम्मल हो गया है तो असरार आज जरूर ये खुशखबरी सुनाएगा। सारा ने अपना अंदाजा जाहिर किया। अगर आया नहीं तो फोन पर इत्तला देगा। हाँ बीबी, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। खाला सज्जो ने उसकी बात से इत्तफाक कर लिया। अरे सारिम अभी तक उठी नहीं, उन्हें उठाऊं? सारा को अचानक सारिम का ख्याल आया और वो अभी कमरे की तरफ बढ़ी थी कि सारिम बेडरूम से बाहर आ गया। लो, ये तो उठकर आ गए। सारा बोली, जनाब मैं आपको उठाने जा रही थी। ऊपर खैरियत तो है? सारिम ने पूछा। ऊपर कोई नहीं है, वो दोनों चले गए। अभी खाला सज्जो दोनों दरवाजे बंद करके आ रही हैं। अच्छा, हाँ बाबा साहब ने बताया था कि वो कब्रिस्तान से यहाँ आएंगे और यहीं से वापस कब्रिस्तान जाएंगे। सारिम को याद आया, ये खाला सज्जो बता रही हैं कि रात को ऊपर से खटपुट की आवाजें आती रही हैं। एक चीख की आवाज भी सुनाई दी। अल्लाह जाने कौन चीखा। सारा ने बताया। अब सारी तफसील तो असरार ही से मालूम हो सकेगी, सारिम ने कहा। नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद सारिम अपने दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था कि घर की घंटी बजी। खाला सज्जो ने आकर बताया, साहब जी, असरार साहब आए हैं। हाँ बुलाओ उसे, ड्राइंग रूम का दरवाजा खोल दो, सारिम ने कहा। खाला सज्जो ने सारिम के हुक्म के मुताबिक असरार को ड्राइंग रूम में बिठा दिया। थोड़ी देर बाद सारिम ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। असरार उसे देखकर खड़ा हो गया। अरे बैठो असरार। सारिम ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे हाथ में लाया और उसे अपने साथ ही सोफे पर बिठा लिया। सारिम ने देखा कि असरार के चेहरे पर खुशी के बजाय उदासी थी। उसका चेहरा देखकर सारिम फिक्रमंद हो गया। उसने पूछा, हाँ असरार, क्या खबर है? सारिम भाई, मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है, असरार ने मायूस लहजे में कहा। वैसे आप ये बताएं, घर में तो खैरियत है? हाँ असरार, अल्लाह का शुक्र है, घर में हर तरह सुकून है। चलें, ये तो अच्छा है, घर में अब सुकून ही रहेगा, असरार ने उदासी भरे लहजे में कहा। अमल कामयाब हो गया? सारिम ने पूछा। कहाँ सारिम भाई, बाबा जी की तो जान पर बन गई थी, जिंदगी थी जो बच गए, असरार ने इंकशाफ किया। अरे मैं तो खुश हो गया था कि अमल कामयाब हो गया, सारिम ने कहा। आखिर हुआ क्या? हुआ ये सारिम भाई के 7वीं रात को उस शर्री मखलूक ने बाबा जी के जिस्म में आग लगा दी। वो तो मैंने फौरन पानी से भरी बाल्टी उन पर डाल दी, वरना वो तो जिंदा जल मरते। साथ में मेरा जाने क्या हशर होता। पानी डालने से आग तो बुझ गई, लेकिन पूरे जिस्म में आनन फानन आबले पड़ गए। इस तरह अमल टूट गया। मैं उन्हें फौरन घर ले गया। पूरा जिस्म जख्मों से भर गया। जख्म पर एक खास मिट्टी लगाई है, इससे फायदा हुआ है। असरार ने असल वाकयात को गोल करते हुए नया किस्सा छेड़ा। फिर इस झूठी कहानी के इख्तिताम पर बोला, बाबा जी मुझे इस सूरत हाल से आगाह करने के लिए आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा है कि बेशक हमारा अमल पूरा ना हो सका, लेकिन इसके बावजूद हमने 6 रातों के अमल से इतना ज़रूर कर दिया है कि वो मखलूक आपके घर के अंदर नहीं दाखिल हो सकेगी। इस शर्री मखलूक से मुकम्मल निजात के लिए बाबा जी सेहतियाब होते ही दोबारा अमल करेंगे। उन्होंने तय कर लिया है कि इस घर से इस खबीस मखलूक को हमेशा के लिए निकाल कर रहेंगे। फिलहाल उन्होंने हिदायत की है कि आप लोग ऊपर किसी कीमत पर ना जाएं। ऊपर का पोर्शन उस वक्त तक के लिए बंद रखें जब तक बाबा जी इस शर्री मखलूक से निजात न दिला दें। ठीक है असरार, घर में खुलने वाला जीने का दरवाजा पहले ही बंद है, अब मैं बैरूनी दरवाजा भी बंद किए देता हूँ, सारिम ने कहा। ये चाबियां मेरे पास हैं, मेन गेट और जीने के दरवाजे की। असरार ने अपनी कमीज की जेब से दोनों चाबियां निकाल कर सारिम के हवाले कर दी और फिर उठकर खड़ा हुआ। अच्छा सारिम भाई, इजाजत।
अरे कुछ चाय वाय तो पियो, सारिम को अचानक ख्याल आया। नहीं सारिम भाई, बाबा जी घर पर अकेले हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। यार उनका मुझ पर बड़ा एहसान है, मेरी तरफ से उन्हें पूछ लेना। जी ठीक है सारिम भाई, अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला खड़ा हो जाए, अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मेरे मोबाइल पर राब्ता कर लीजिएगा, असरार ने जाते जाते तलकीन की। सारिम उसे बाहर गेट तक छोड़ने आया। उसके जाने के बाद सारिम ने गेट बंद किया, फिर सीने का बैरून दरवाजा लॉक किया और घर में दाखिल हुआ। सारा और खाला सज्जो दोनों बेचैनी से उसकी मुंतजिर थी। वो जानना चाहती थी कि बाबा कंबल का अमल मुकम्मल हुआ कि नहीं। हाँ सारिम साहब, क्या खबर है? सारा ने खुजली से पूछा। भाई खबर तो कोई अच्छी नहीं है, बाबा साहब जिंदा जलने से बच गए, असरार ने उन्हें बचा लिया, पूरा जिस्म जख्मी है, सारिम ने अंधुनाक खबर सुनाई। ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, सारा परेशान होकर बोली। तभी वो दरवाजे खुले छोड़ गए थे, खाला सज्जू ने जो चीख सुनी थी वो बाबा की होगी। हाँ सारिम ने कहा। एक इत्मीनान का पहलू इस बुरी खबर में यह है कि वो इस शर्री मखलूक को यहाँ अंदर से निकालने में कामयाब हो गए हैं। वो खबीस मखलूक अब घर में दाखिल नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने हिदायत की है कि ऊपर का पोर्शन मुकफ्फल कर दिया जाए, उस वक्त तक के लिए जब तक वो उस मखलूक को घर के अहाते से निकाल ही न दें। इसका मतलब ये है कि वो दोबारा यहाँ आएंगे? इतने बड़े हादसे के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बड़ा हौसला है उनमें, सारा ने तारीफ की। हाँ उन्होंने कहलवाया है कि वो इस शर्री मखलूक को घर से पूरे तौर पर निकाल कर रहेंगे, सारिम ने बताया। बाबा कंबल को सेहतियाब होने में चंद दिन लगे। मसान के अलावा उसने सारिम के घर से पकड़े गिद्ध के पंजे को जलाकर तेल कशीद किया, फिर इस तेल में मसान के अलावा और कई चीजें मिलाई, एक मरहम जैसी चीज बन गई। इस मरहम को खुश्क होते जख्मों पर लगाया तो चंद दिनों में उसकी जल्द साफ हो गई। उसके जिस्म पर जख्म का एक निशान भी ना रहा। लगता ही ना था कि बाबा कंबल का ये वो जिस्म है जिस पर नजर भर देखना भी मुश्किल था। बाबा कंबल दो तकिए पुष्ट से लगाए तख्त पर नींद दराज था और एक नौजवान औरत आंखों में आंसू भरे कुर्सी पर बैठी थी। उसने बाबा कंबल का पैर पकड़ा हुआ था। बस चंद लम्हों की बात थी कि वो शिद्दत गम से फूट फूट कर रोने वाली थी। अरे रोती काहे को है? बाबा कंबल ने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। इतना कहना था कि वो बाबा कंबल के पैरों पर सर रख कर बेख्तियार रो पड़ी। बाबा कंबल ने अपने पाँव एक झटके से पीछे खींच लिए और गुस्से से बोला, अरे कहा ना कि रोती क्यों है, चल सीधी होकर बैठ, आंसू पोंछ और मेरी बात गौर से सुन। वो नौजवान औरत फौरन पीछे उठकर बैठ गई और अपने दुपट्टे से आंसू साफ करके बाबा कंबल की तरफ उम्मीद भरे अंदाज में देखा। तुझे औलाद चाहिए ना? बाबा कंबल ने पूछा। हाँ बाबा, ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू फिर उमड़ आए। और बाबा रोना बंद कर, नहीं तो तुझे बाहर भेज दूंगा, बाबा कंबल ने तंबीह की। शाम का वक्त था, जुमेरात का दिन था। बाबा कंबल के घर का सहन इस वक्त औरतों से भरा हुआ था। आज का दिन सिर्फ औरतों के लिए मखसूस था। असरार नासिर दरवाजे पर बैठा था। वो एक एक करके औरतों को बाबा कंबल के पास भेजता जा रहा था। ये चौथी या पांचवी औरत थी जो अपने मसले के हल के लिए बाबा कंबल के पास पहुंची थी। औलाद से महरूमी ने उसके होश व हवास गुम कर दिए थे। उसकी सास ने जिंदगी अदाब कर दी थी। वो उठते बैठते अपने बेटे की दूसरी शादी कराती रहती थी। अब तो उसका शौहर भी उसे तलाक देने पर आमादा हो गया था। बाबा कंबल अब आखिरी सहारा था। बाबा की उसने बहुत शोहरत सुनी थी। वो बड़ी उम्मीदें लेकर यहाँ आई थी। उसने बाबा की तंबीह सुनते ही फौरन आंसू पोंछ डाले और किसी हद तक मुस्कुराने की भी कोशिश की। देख बाबा, तेरे यहाँ औलाद हो जाएगी, पर एक शर्त है। बाबा कंबल ने उसकी आंखों में देखा। शर्त का सुनकर उस नौजवान औरत की आंखों में रोशन उम्मीद के दिए बुझने लगे। जाने बाबा कंबल क्या शर्त लगाए, वो शर्त पूरी कर सके या ना कर सके। घबरा मत, बाबा कंबल और किस्म का आदमी है, मुझे औरतों से कोई दिलचस्पी नहीं। बाबा ने उसकी उलझन दूर की। ठीक है बाबा, आप शर्त बताएं, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। देखो बाबा, औलाद तुझे मिल जाएगी, एक नहीं कई बच्चे होंगे, लेकिन शर्त यह है कि पहला बच्चा हमारा होगा। पहले बच्चे पर तेरा कोई इख्तियार ना होगा। बाबा कंबल ने अपनी शर्त बताई। बाबा ये कैसे होगा? वो नौजवान औरत कांप उठी। बच्चे की पैदाइश के बाद जब तू अस्पताल से घर जाएगी, उसी रात काले कपड़ों में एक शख्स आएगा। वो कहेगा बाबा की अमानत दे दो, तो तुम नौजायदा बच्चा उसके हवाले कर देना और उसी सुबह हमारे पास आ जाना। बस फिर तुम्हारे हर साल 2 जुड़वा बच्चे होंगे। तुम्हारा घर बच्चों से भर जाएगा। सच बाबा? वो नौजवान औरत बेख्तियार फूल की तरह खिल उठी। बाबा कभी झूठ नहीं बोलता, बाबा कंबल ने यकीन से कहा। ठीक है बाबा, मैं अपने शौहर से बात कर लूं? औरत ने कहा। हाँ कर ले, जरूर कर ले, लेकिन एक खतरा है। हो सकता है तेरा शौहर हमें अपनी औलाद देने पर राजी ना हो। तू ऐसा कर, हमसे पुड़िया ले जा, जब उम्मीद से हो जाए तो अपने शौहर से बात कर लेना। अगर बाबा वो फिर भी राजी ना हुआ तो? नौजवान औरत बात पूरी ना कर सकी। तू फिक्र ना कर, हमें बच्चा छीनना भी आता है, हम उसे उठवा लेंगे, बस तू हमारा साथ देना। अगर तुम मुकर गई तो याद रखो वो बच्चा फिर भी तुम्हारा ना होगा, वो 7 दिन के अंदर चल बसेगा। बाबा फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं किसी से बात करती ही नहीं, मैं खुफिया तौर पर बच्चा आपके हवाले कर दूंगी, लेकिन फिर कहीं ऐसा ना हो कि मैं औलाद से महरूम ही रहूं।
नौजवान औरत ने खदशा जाहिर किया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बाबा जो कहता है वो करके दिखाता है। ठीक है बाबा, फिर आप मुझे पुड़िया दे दें, पहला बच्चा आपका हुआ। नौजवान औरत ने दिल पर पत्थर रखकर कहा। हाँ, ये हुई ना बात, बाबा कम्बल ने खुश होकर कहा। वो असरार, उसने फिर आवाज लगाई। असरार दरवाजे पर ही बैठा था, वो फौरन उठकर सामने आ गया। जी बाबा। असरार, इसको औलाद वाली पुड़िया दे दे, बाबा कम्बल ने कहा। असरार दूसरे कमरे से एक पुड़िया उठा लाया और उसे बाबा कम्बल के कदमों में रख दिया। बाबा, ये पुड़िया उठा लो, बाबा कम्बल ने उस नौजवान औरत को हिदायत की। जब तुम्हारा शौहर सो जाए तो इस पुड़िया को मुट्ठी में लेकर 7 बार उसके सर पर घुमा देना, फिर उस पुड़िया को किसी खुफिया जगह रख देना। इस पुड़िया को खोलकर हरगिज मत देखना, वरना नुकसान उठाओगी। 1 माह के अंदर अंदर तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। जब तुम्हें डॉक्टर खुशखबरी सुना दे तो इस पुड़िया को खुफिया जगह से निकालकर फ्लश में बहा देना। खुशखबरी सुनने के बाद इस पुड़िया को फ्लश में डालने में देर बिल्कुल ना करना। हमारी बात तुम्हारी समझ में आ गई? जी बाबा, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ, नौजवान औरत ने कहा। बस बाबा, फिर जाओ, बाबा कम्बल ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। बाबा, आपकी क्या खिदमत करूं? उस नौजवान औरत ने पर्स की तरफ हाथ बढ़ाया। अपनी बात पर कायम रहना, बस इसी को हमारा इनाम समझो, बाबा कम्बल ने कहा। ठीक है बाबा, मैं चलती हूँ, वो नौजवान औरत उठते हुए बोली। असरार, अगली साइला भेज, बाबा कम्बल ने उस नौजवान औरत के जाने के बाद आवाज लगाई। बस फिर असरार एक के बाद एक औरत भेजता रहा। हर औरत अपना मसला बयान करती रही। बाबा, मेरा शौहर बड़ा जालिम है, मुझे मारता है। बाबा, मेरा शौहर बड़ा खराब है, दूसरी औरतों के चक्कर में रहता है, किसी और ने शिकवा किया। बाबा, मेरी सास नंदो ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है, कोई और बोली। बाबा, मेरे सर में हर वक्त दर्द रहता है, किसी ने जादू करा दिया है, किसी ने शिकायत की। ज्यादातर औरतों के इसी तरह के मसाइल थे। कुछ औरतें अपनी नौजवान लड़कियों को लेकर आती, वो हाल कहती, उन पर किसी जिन का साया होता या आसेब होता। बाबा कम्बल शैतानी इल्म का माहिर था, वो ऐसे मसाइल चुटकियों में हल करने का दावा करता था। मसाइल हल होते या मजीद उलझ जाते ये अलग मसला, लेकिन वो अपनी शुबदाबाजी से परेशान हाल औरतों के दिल में जगह बना लेता और उनसे ठीक ठाक रकम ऐंठ लेता। औलाद से महरूम औरतें वो सब कुछ करने पर राजी हो जाती जिसका तसव्वुर करके ही आदमी कांप उठे। जिस नौजवान औरत ने अपना पहला बच्चा बाबा कम्बल के हवाले करने का वादा किया, उसके यहाँ बच्चा जरूर हुआ। जो उसने खामोशी से वादे के मुताबिक काले कपड़े वाले शख्स असरार के हवाले कर दिया, लेकिन फिर वो कभी साहिब औलाद ना हो सकी और इसी गम में वो पागल होकर चल बसी। बाबा कम्बल ने उस बच्चे के साथ क्या सलूक किया, ये वो नौजवान औरत ना जान सकी। बाबा कम्बल एक इंतहाई सफाक शख्स था, शैतान का चेला। जो शख्स अपने बाप को कत्ल कर दे, उसके दिल में मोहब्बत नाम की चीज कहाँ से आएगी? वो एक पत्थर दिल शख्स था। जादू के जरिए बंदों को सफाई हस्ती से मिटाना उसका दिलचस्प मशगला था। सबसे ज्यादा खुशी उसे किसी की जान लेकर होती थी। वो मालदार औरत जो अपनी सौकन की जान का सौदा 80,000 में कर गई थी। वादे के मुताबिक वो 70,000 रुपए बाबा कम्बल के हवाले कर गई। उसकी सौकन महज चंद घंटों में चल बसी थी। जादू का असर शुरू होते ही उसे सांस लेने में दिक्कत पेश आने लगी। उसे महसूस होने लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। आनन फानन उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन कोई डॉक्टर उससे बचा नहीं सका। वो शहर के कई बड़े डॉक्टरों के सामने दम तोड़ गई। कोई उसकी बीमारी के बारे में तशखीस ना कर सका। बस वो चंद घंटों में चटपट हो गई। उसके शौहर को अपनी हसीन बीवी की मौत का बड़ा दुख हुआ। इस पुरस्कार मौत ने यहाँ से वहाँ तक हलचल मचा दी। खानदान के सारे लोग बहुत परेशान हुए। बिलाखिर मरहुमा की माँ ने किसी आमिल से रुजू किया तो उस आमिल ने बताया कि अलमारी में लटके सुर्ख सूट की शलवार में एक पुड़िया रखी है। ये मौत उस पुड़िया की वजह से हुई है। जादू करने वाला कोई जबरदस्त आमिल है। उस जादू का कांटा पानी भी नहीं मांगता, और ये कि उस जादू को कराने वाली उसकी पहली बीवी है। ये मालूम होते ही उसने खड़े खड़े अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी और मरहुमा की छोटी बहन से दूसरी शादी कर ली। तलाक मिलते ही उस औरत ने खुदकुशी कर ली। ये हुआ अंजाम दूसरे की जान लेने का। इस तरह के अंजाम से बाबा कम्बल हरगिज मुतासर नहीं होता था। वो सफाक शख्स रोज बरोज अपनी ताकत बढ़ाने के चक्कर में सरगर्दा रहता था। अपने अंजाम से बेखबर वो अपनी ताकत बढ़ाने की हवस में सब कुछ भूल बैठा था। औरतों के जाने के बाद असरार ने आज की कमाई को शुमार किया। ये खासी मोटी रकम थी। बाबा कम्बल ने उन नोटों का बकस का ताला खोलकर उसमें डाला। ये बकस नोटों से भरने लगा था। असरार उन नोटों भरे बकस को देखता तो उसका दिल ललचा उठता। बाबा कम्बल की शागिर्दी में रहकर असरार में वो तमाम खबासतें पैदा होती जा रही थी जो बाबा कम्बल में बदरजा अतम मौजूद थी। वो बाबा कम्बल से खासा कुछ सीखता जा रहा था। जैसे जैसे वो काले इल्म की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसका दिल सियाह होता जा रहा था। कुफर की तरफ बढ़ते कदम उसे ऐसी दुनिया की तरफ ले जा रहे थे जहाँ चारों तरफ आग ही आग थी, लेकिन उसे इसकी परवाह न थी कि वो किस आग की तरफ बढ़ रहा है। वो तो आग को गुलजार समझकर आगे और आगे बढ़ता ही जा रहा था। अब वो बाबा कम्बल के खास करीब आ गया था। वो उसे ऐसे सवाल भी कर लिया करता था जिन्हें पहले पूछते हुए उसकी जान निकलती थी। जब उसे ये मालूम हुआ था कि बाबा कम्बल अपने बाप का कातिल है, वो एक उलझन का शिकार था। उसका जहन बार बार ये सवाल करता था कि आखिर बाबा ने अपने बाप को क्यों मारा।
اس کے باپ نے ساتھی رات کو رنگ میں بھنگ ڈال دیا تھا، اسے زندہ جلانے کی کوشش کی اور اس نے بابا کمبل کو آگ سے بچانے کے لیے اس پر پانی ڈال دیا تھا، لیکن بابا کمبل خوش ہونے کے بجائے اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ یہ بات بھی ابھی معمہ تھی، اگر وہ پانی سے بھری بالٹی بابا کمبل پر نہ الٹتا تو کیا وہ اسے جلا کر خاک نہ کر دیتی؟ اس مسئلے پر بھی بابا کمبل نے زبان نہیں کھولی تھی۔ کئی خطرناک باتوں پر اسرار کے پردے پڑے ہوئے تھے اور اسرار ناصر اس معاملے میں بابا کمبل سے بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ ایک رات بابا کمبل کھانا کھا کے اور مشروب خاص پی کر کسی مردے کی طرح ہاتھ پاؤں ڈال کر لیٹا تھا اور وہ اس کے ہاتھ پاؤں دبا رہا تھا تو اچانک اسرار کے ذہن میں یہ سوال چکرانے لگا کہ آخر بابا نے اپنے باپ کو کیوں مارا؟ وہ اسرار کیا سوچ رہا ہے؟ اچانک بابا کمبل نے اپنی زرد آنکھیں کھول کر اسرار کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں بابا، بس ایسے ہی۔ اسرار ناصر اپنے خیال کی چوری پر چور سا ہوا۔ ارے جو سوچ رہا ہے وہ بول، ڈرتا کیوں ہے؟ تو میرا پہلا اور آخری چیلا ہے۔ بابا کمبل نے اس کی ہمت بندھائی۔ بابا ایک بات میرے جی میں ہے پر پوچھتے ہوئے ڈرتا ہوں کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولا۔ او نہیں ہوں گا ناراض، تجھے کہا تو ہے بول، کھل کر بول، جو پوچھنا ہے کھل کر پوچھ، آج تیری ہر بات کا جواب ملے گا۔ بابا کمبل جیسے کسی ترنگ میں تھا۔ بابا آپ نے اپنے والد کو کیوں قتل کیا؟ بالآخر اسرار ناصر کی نوک کے زبان پر یہ خطرناک سوال آیا۔ وہ اسرار، اگر میں اسے قتل نہ کرتا تو وہ مجھے قتل کر دیتا، بابا کمبل نے صاف کہا۔ کیوں آخر؟ اسرار ناصر نے وضاحت طلب کی۔ دیکھ اسرار، میں تجھے بتاؤں، میرا باپ بڑا زبردست عامل تھا، اس نے یہ عملیات ایک بنگالی جادوگر سے سیکھے تھے۔ میرا باپ اس بنگالی جادوگر کی خدمت میں 14 سال رہا تھا۔ وہ کالی کا پجاری تھا، اس کے پاس طاقت کا خزانہ تھا۔ جو کام دوسرے عامل پتلا بنا کر یا ہانڈی کا وار کر کے کرتے ہیں وہ کام چٹکیوں میں کر دیا کرتا تھا۔ میرے باپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا۔ پھر میرا باپ پاکستان آ گیا۔ اس شہر میں اس کی ٹکر کا ایک عامل بھی نہ تھا۔ وہ کالے علم کا بے تاج بادشاہ تھا۔ بہت سے عامل اس کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے۔ میں نے بچپن سے اپنے گھر میں اپنے باپ کو مختلف جاب کرتے دیکھا۔ میرے دل میں بھی جادو سیکھنے کا شوق جاگا۔ میں شروع ہی سے اپنے باپ کی معاونت کرتا تھا۔ بڑے سے کمرے میں بے شمار مرد عورت بھرے رہتے۔ میرا باپ کالے کپڑوں میں ملبوس ایک تخت پر بیٹھا رہتا۔ اس کے سر پر سفید ٹوپی ہوتی اور گلے میں بڑے بڑے منکوں کی مالا۔ تخت پر سفید چادر بچھی ہوتی۔ میرا باپ ایک خوبصورت آدمی تھا، میری طرح کالا کلوٹا نہیں۔ میں دراصل اپنی ماں پر گیا ہوں۔ میری ماں ایک بدصورت عورت تھی۔ وہ موٹے ہونٹ والی کوئی ہپشن لگتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے باپ نے اس بدصورت عورت سے کیسی شادی کر لی۔ میں 10-12 سال کا تھا کہ میری ماں کا انتقال ہوا۔ وہ مٹی کے تیل کا چولہا پھٹنے سے مری۔ میرے باپ کو شاید میری ماں سے بہت محبت تھی، شاید اسی لیے اس نے دوسری شادی نہیں کی۔ میں اس کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے باپ کی ساری توجہ مجھ پر مبذول ہو گئی۔ اس نے مجھے چھوٹے چھوٹے عمل سکھانے شروع کیے۔ میں تو اس دنیا کو دیکھ کر ہی دنگ رہ گیا۔ کالی دنیا بڑی انوکھی اور عجائبات سے بھری ہے۔ کالے علم میں میری دلچسپی روز بروز بڑھتی گئی۔ علم نوری ہو یا ناری، علم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ آدمی اپنی طاقت بڑھانے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتا ہے۔ میرا باپ بھی اپنی طاقت بڑھانے کے لیے نت نئے عمل کرتا رہتا تھا۔ کالے علم کی دنیا ہمہ وقت بھیڑ مانگتی ہے، اور جو بھیڑ سب سے مقبول ہے وہ انسانی بھیڑ ہے۔ انسانی بھیڑ دے کر عامل دن دونی رات چوگنی ترقی کرتا ہے۔ میں 17 سال کا ہو چکا تھا۔ میں کالے علم کے بہت سے اسرار اور رموز سے واقف ہو گیا تھا۔ ایک دن اچانک میں نے اپنے باپ کی نظروں سے خون ٹپکتا دیکھا۔ وہ مجھے بڑی پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی نظروں میں خون کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے باپ کے دل میں اس وقت کیا خواہش ابھری ہے۔ پھر اس نے ایک ایسا عمل شروع کیا کہ اس کے اثرات مجھ پر ظاہر ہونے لگے۔ میرے دل نے بعض وقت ایسی ٹیسیں اٹھتی کہ میں سوتے سوتے تڑپ کر اٹھ جاتا۔ جب جاگتا تو میرا باپ کچھ پڑھا رہا ہوتا۔ پھر ہمہ وقت میرے دل میں یہ احساس رہنے لگا جیسے کوئی لمبی سی سوئی چبھ گئی ہو۔ کسی طرح چین ہی نہ آتا تھا۔ اب مجھے کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہا تھا۔ ایک رات دل میں شدید ٹیس اٹھی۔ میں تڑپ کر اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرا باپ میری چارپائی کی سرانے کھڑا بڑی تیزی سے کچھ پڑھ رہا ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور باپ سے احتجاجاً بولا، ابا تم کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں اکمل، تیری حفاظت کے لیے ایک عمل کر رہا ہوں۔ ابا نے سفید جھوٹ بولا۔ ابا ایسا مت کرو، دیکھو ابا میں تمہارا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میں نے بڑی لجاجت سے کہا، ہاں میں جانتا ہوں تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، میرا پیارا ہے، تیری حفاظت بڑی ضروری ہے۔ تو جانتا ہے کہ میرے علم کی طاقت سے کتنے لوگ جلتے ہیں۔ یہاں دشمن بہت ہیں، ڈرتا ہوں کہیں کوئی تجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ ابا نے ایک نئی کہانی گڑھی تھی۔ میں یہ بات اچھی طرح جان گیا تھا کہ میرا اصل دشمن کون ہے۔ میرا باپ اس وقت 100 دشمنوں کا ایک دشمن تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل بیٹھنے لگتا تھا۔ یہ احساس کہ دل میں کوئی سوئی سی چبھی ہوئی ہے، یہ احساس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک رات جب میں چارپائی پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا تو میرا باپ یہ سمجھ کر کہ میں سو رہا ہوں اس نے میری زندگی کی خاتمے کا عمل شروع کر دیا۔ بس وہ آخری رات تھی، آخری موقع تھا۔ اس کے بعد میرے جسم میں بالکل جان نہ رہتی۔
मैं मफलूज होकर रह जाता। फिर अगर वो मेरी गर्दन पर छुरी भी फेर देता तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। हाथ तो बड़ी बात है, मैं अपनी उंगली हिलाने के काबिल भी न रहता। तब मैंने सोचा अभी या फिर कभी नहीं। मुझे अपनी जान अजीज थी और किसे अपनी जान अजीज नहीं होती। मेरा अपना बाप मेरी जान का दुश्मन बन गया था। ये बड़ी हौलनाक बात थी। मुझे हर कीमत पर अपनी जान बचाना थी और जान बचाने के लिए बस एक ही तरकीब थी, तख्त या तख्ता। वो रहे या मैं रहूं। मैं तेजी से चारपाई पर बैठकर उठ गया। यह हरकत मेरे बाप के लिए बड़ी गैर मुतवक्का थी। वो एकदम घबरा कर पीछे हटा। मुझे मौका मिल गया। मैं तेजी से अपने बाप की चारपाई की तरफ भागा। इतनी देर में मेरा बाप समझता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं वो तेज छुरी निकाल लाया जिसे मेरा बाप हमेशा अपने तकिए के नीचे रख कर सोता था। जब मैं दोबारा कमरे में आया तो छुरी वाला हाथ पीछे था। मैंने देखा वो अब भी खड़ा बहुत तेजी से कुछ पढ़ रहा है। उसे मुसलसल पढ़ता देखकर मेरी रगों में गुस्सा बिजली की तेजी से दौड़ गया। मैंने उस पर पैर दर पैर छुरी के वार किए। वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा इंतहाई कदम उठा लूंगा। जब तक वो संभलता मैंने छुरियों के वार से उसका जिस्म छलनी कर दिया। मेरा बाप चंद मिनटों में तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। उसके मरते ही जैसे मुझे लगा कि मैं आज़ाद हो गया हूँ। मेरा जहन खुल गया था। मेरे दिल से सुई की सी चुभन यखलक खत्म हो गई थी। मैंने छुरी वहीं फर्श पर फेंकी। पूरे इत्मीनान से नहाया धोया, नए कपड़े तब्दील किए, अपने खून आलूद कपड़े एक थैले में डाले और अपने घर की दीवार कूद कर सड़क पर आ गया। करीब ही एक नाला था। खून आलूद कपड़े का थैला बांध कर नाले में फेंका और फिर इत्मीनान से चहलकदमी करता घर की तरफ बढ़ा और दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। साथ ही आवाजें भी देता जाता था, अब्बा अब्बा। जब मुझे दरवाजा पीटने में खासी देर हो गई तो पास पड़ोस के लोग घरों से बाहर निकल आए। मैंने उन्हें बताया कि मैं फिल्म का आखिरी शो देखकर आ रहा हूँ। इतनी देर से दरवाजा पीट रहा हूँ, अब्बा दरवाजा खोलते ही नहीं। पड़ोसियों ने अपनी सी कोशिश करके देख ली। दरवाजा पीट पीट कर लोग थक गए तो एक पड़ोसी ने मुझे घर में कूद जाने का मशवरा दिया। फिर उसने अपना कंधा पेश किया। मैंने उसके कंधे पर चढ़कर दीवार पकड़ ली और उस पर चढ़कर अंदर कूद गया। वहां अंदर मैंने अपने बाप की खून आलूद लाश देखी। चीख मारकर दरवाजे की तरफ भागा। अंदर से कुंडी खोली। दरवाजा खुलते ही कई पड़ोसी अंदर घुस आए और सबने मेरे बाप की खून आलूद लाश देख ली। मेरा ड्रामा कामयाब रहा। मेरे बारे में कोई शुबा भी ना कर सका कि ये काम मैंने किया है। एक तो मेरी उम्र कम, दूसरे अपने बाप का इकलौता फरमाबरदार बेटा। मैं किस तरह अपने बाप का कत्ल कर सकता था और क्यों? बाप के मरने के कुछ अरसे के बाद मैंने वो घर छोड़ दिया। पैसे की कोई कमी न थी। मुझे मालूम था मेरे बाप ने सहन में किस जगह संदूकची में नोट दफन किए हुए हैं। मैंने मामला ठंडा होने के बाद वो सारा दफीना निकाला और एक नए इलाके में घर ले लिया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपना काम जमाया। जो बाप से सीखा था उस इल्म को आगे बढ़ाया। मेहनत करता गया, फल पाता गया। किस्सा मुख्तसर, आज मैं जैसा भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। बाबा कम्बल ने बिलाखिर अपनी कहानी खत्म की। एक बात और बताएं बाबा, आपने शादी क्यों नहीं की? असरार नासिर के जहन में अचानक ये सवाल आया। अरे असरार, मैं तुझ जैसा खूबसूरत हूँ नहीं, मुझे अपनी बेटी कौन देता? बाबा कम्बल ने हंसकर कहा। ये तो बाबा किस्मत की बात है। खूबसूरत को बदसूरत और बदसूरत को खूबसूरत बीवियां मिल जाती हैं। बस मेरी किस्मत में बीवी नहीं, ना अच्छी ना बुरी। मुझे तो लगता है आपने शादी की कोशिश ही नहीं की। हाँ असरार, तेरी ये बात भी सही है। मैंने शादी के बारे में कभी सोचा नहीं और ना सोचने की एक खास वजह थी। वो क्या? असरार नासिर ने पूछा। मेरा बाप मरने के बाद मेरे ख्वाब में आया था। पता नहीं वो ख्वाब था या हकीकत में आया था। उस रात में नींद गुनूदगी के आलम में था। ना सो रहा था ना जाग रहा था। मैंने अपने बाप को अपने सराने खड़े देखा। एक लम्हे को तो मेरी जान निकल गई। मेरी नज़र में कत्ल से पहले का मंजर घूम गया, जब वो मुझे मारने के लिए मेरे सराने खड़ा जाप किया करता था। लेकिन फिर फौरन ही दिमाग में ये बात आ गई कि मैं तो अपने बाप को कत्ल कर चुका हूँ। ये कोई ख्वाब है? मेरा बाप मेरे सराने खड़ा मुझे घूर रहा था। मैं पूरी तरह जाग चुका था। मैं उठकर बैठ गया। अकमल, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। याद रख, तूने मुझे मारा है, एक दिन आएगा कि तेरी औलाद तुझे मारेगी। तू मकाफात अमल से बच ना सकेगा। मेरे बाप ने बड़े गुस्से से कहा और फिर पलट कर दरवाजे से निकल गया। मैं समझ ही ना सका कि ये ख्वाब है या हकीकत, लेकिन इस बात से मेरे दिल में खौफ बैठ गया। मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि शादी नहीं करूंगा। जब शादी नहीं करूंगा तो औलाद कहाँ से होगी, और जब औलाद नहीं होगी तो मुझे मारेगा कौन? मैंने इस डर की वजह से अपना कोई शागिर्द भी नहीं बनाया। तुम पहले और आखिरी शागिर्द हो, कहीं तुम मुझे ना मार देना। बाबा कम्बल हंसते हुए बोला। अरे बाबा, क्या बात कर रहे हैं? असरार नासिर ने अपने दोनों कान पकड़े। तौबा तौबा, मैं अपने मौसिन को मारूंगा? आपने मुझे इतना कुछ सिखाया है। ओ असरार, अभी मैंने तुझको कुछ नहीं सिखाया, तूने इसी को इतना कुछ समझ लिया बेवकूफ। ये काली दुनिया बहुत बड़ी है। ऐसे ऐसे करिश्मे छुपे हैं इस दुनिया में कि तू देखे तो दंग रह जाए। बाबा कम्बल ने उठते हुए कहा। चल छोड़ मेरे पाँव, बहुत दबा लिया तूने। असरार नासिर ने तकिया उठाकर दीवार से लगाए। बाबा कम्बल ने पीछे खिसक कर उनसे टेक लगा ली। हाँ बाबा, एक बात और। हाँ हाँ, पूछ ले जो कुछ पूछना है, आज पूछ ले, फिर तुझे ऐसा मौका नहीं मिलेगा।
बाबा आपके अब्बा जब उस रात यहाँ तक पहुँच गए थे तो वो अंदर क्यों नहीं आए? वो दीवार के ऊपर से भी आ सकते थे। इस घर की दीवारें कौन सी ऊंची हैं? मैं कूद कर अंदर आ सकता हूँ। मेरे अब्बा अगर अंदर आ सकते तो आना जाते, वो फिर दरवाजे से क्यों लौट गए? बाबा कंबल ने उल्टा उससे सवाल कर दिया। शायद उन्हें आपकी बात सुनकर ठेस पहुंची। आपने जो बात कह दिया कि दरवाजा नहीं खुलेगा, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। असरार नासिर ने अपनी अकल के मुताबिक बात की। ओ असरार, तू नहीं जानता कि मेरा बाप इंतकाम की आग में जल रहा है, बस मौके की तलाश में है। लेकिन मेरी हिफाजत करने वाले भी कुछ कम नहीं। मेरा बाप इतनी आसानी से मुझे नहीं मार सकता। आपके जिस्म में आग तो लगा दी थी, वो महज एक तमाशा था मेरा अमल तोड़ने के लिए। उस काकूर के बच्चे ने बड़ी अय्यारी से मेरे बाप को इस्तेमाल किया। इधर उसने शोभा दिखाया और उधर तूने पानी से भरी बाल्टी मुझ पर उलट दी। मेरा अमल बिखर गया। जो काम वो काकूर खुद ना कर सका वो तूने कर दिखाया। बाबा कंबल के लहजे में गुस्सा ऊत कर आया। असरार डर गया कि ये मैंने क्या किस्सा छेड़ दिया। बड़ी मुश्किल से उसका गुस्सा ठंडा हुआ था। वैसे बाबा कंबल ने असरार नासिर को कुछ नहीं कहा था, इसलिए कि वो सारे असरार और मुंह से वाकिफ था। असरार का अमल 100% फितरी था। वो अपने उस्ताद के जिस्म में आग लग गई, किस तरह बर्दाश्त कर सकता था। चल दफा कर इस किस्से को, जो होना था हो गया, अब आगे की सोचना है। बस किसी तरह मेरे हाथ काकूर आ जाए, फिर देख मैं क्या तमाशा करता हूँ। मेरे हाथ में ऐसी ताकत आ जाएगी कि ये दुनिया मुझे बार बार झुककर सलाम करेगी। बाबा कंबल ने जागती आंखों से ख्वाब देखा। बाबा फर्ज करो अगर काकूर आपके हाथ ना आया तो? असरार ने बात अधूरी छोड़ दी। तो ओ असरार, काली दुनिया में एक काकूर थोड़ा ही है, ताकत हासिल करने के बहुत रास्ते हैं। बाबा कंबल ने अचानक असरार को घूर कर देखा। असरार ने महसूस किया कि बाबा कंबल की जर्द आंखों में खून की सुर्खी घुलती जा रही हो। वो बड़े प्यार से असरार को देखे जा रहा था, लेकिन असरार को उसकी आंखों में साफ खून उतरता दिखाई दे रहा था। वो बाबा कंबल की खूनी नजरें देखकर कांप उठा और घबरा कर बोला, बाबा ऐसा सोचना भी नहीं। क्या ना सोचूं? असरार क्या कह रहा है तू? बाबा कंबल ने हैरान होकर पूछा। अब उसका चेहरा बदल चुका था। वो खून जो चंद लम्हों पहले उसकी जर्द आंखों में नजर आ रहा था गायब था। कुछ नहीं बाबा। असरार नासिर ने अपनी कही हुई बात फौरन छुपा ली। वो नहीं चाहता था कि बात वादे होकर किसी खराबी का बाइस बन जाए। ये बात उसकी जुबान से बेख्तियार निकल गई थी। ये चंद लम्हों का एहसास था। बाबा कंबल का चेहरा किसी ख्याल के तहत एकदम बदला था और असरार नासिर के ये कहते ही बाबा ऐसा सोचना भी नहीं, वो एकदम नॉर्मल हो गया था। बाबा कंबल बड़ा हैरान था कि असरार नासिर ने उसके दिल में आई बात को किस तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये वो अंदाजा ना कर सका कि उसके दिल की बात खून बनकर आंखों में उतर आई थी। बाबा कंबल उसे देखकर मुस्कुराया। तू बड़ा ज़हीन है असरार, तू इस फन में बड़ी तरक्की करेगा। बस बाबा मेरा ख्याल रखना। असरार बड़ी वफादारी से बोला। मैंने सबको छोड़ दिया है, अब जो कुछ हो वो तुम ही हो। अब मेरा मरना जीना तुम्हारे साथ है। हाँ हाँ, परेशान क्यों होता है? हम तुझे वो कुछ सिखा देंगे कि तू जब तक जिएगा हमें याद करेगा। बाबा कंबल ने बड़े यकीन भरे लहजे में कहा। बस जरा काकूर हमारे हाथ आए। इस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मुझे बताएं? असरार नासिर ने पूछा। नहीं, तुम इस सिलसिले में मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, बाबा कंबल ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। अगर सारिम भाई के घर जाना हो तो मुझे हुक्म करें, असरार नासिर ने कहा। नहीं, अब वहाँ नहीं जाना, इस घर से दूर रहकर अमल करना है। थोड़ा वक्त लगेगा, वो हाथ आ जाएगा। अब मुझे कब्रिस्तान में डेरा जमाना होगा। बिलकीन ने हमारा हिंडविला तैयार कर दिया होगा, बाबा कंबल ने कहा। बाबा आप बोलो तो मैं कब्रिस्तान का चक्कर लगा लूं दिन में, देखा हूँ हिंडविले की क्या सूरत हाल है। नहीं असरार, कोई जरूरत नहीं, वो दिलगीर 1-2 दिन में आने वाला होगा, वो खुद ही आकर सारी सूरत हाल बता देगा, बाबा कंबल ने कहा। जैसी आपकी मर्जी बाबा, असरार ने सादतमंदी से कहा। बाबा कंबल के दिमाग पर काकूर किसी आसेब की तरह छा गया था। उसने काकूर के हुसूल को अपनी अना का मसला बना लिया था, या शायद वो एक ऐसा नादीदा खजाना था जिसे हासिल करने के लिए वो सर धड़ की बाजी लगा देना चाहता था।